ओके ओके, थैंक यू। ठीक है,
Good morning, everybody. Good morning, Good ma'am. morning, ma'am. Good Good morning, morning, ma'am. ma'am. Very good Good morning. morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, Dr. Sandeep. As I can see, our guest speaker has also joined. Can we start? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good morning, everyone. I hope I'm audible to all. I request you all to please mute your mic to avoid any disturbance or echo. One small positive thought in the morning can change your whole day. Therefore, new mornings should start afresh. I would like to request my fellow mates to start the program with the auspicious Sarv Dharm Pratna. ईशावास्य वेदं सर्वं यत्किञ्चं जगद्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जेथा माद्रिदः कस्य स्वेद्यनम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति वेद्यै स वै वेदैः सागपदक्रमोपनिषदैः गार्यन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الحي في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق الله العظيم. Lead kindly light amid the encircling gloom. Lead thou me on. The night is dark and I am far from home. Lead thou me on. Keep thou my feet. I do not ask to see the distant sea. One step enough for me. एकंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा
वाहिगुरु जी की फतेह। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोय सब साधूणं एसो पंच नमोकारो सव पाव पणासरो मंगलाणं च सवेसी पद्मं हवै मंगलम्। हम्मायदयेश्चं कारेण सच हम्माय तन्वो द्रष्टाति हम्माय तन्वो व्रजदावरे हम्माय तन्वो वेरेत्रीं हम्मायेष्टिं प्राणोषखात्रम् हम्मायास्नां चित्तपर्जनित्यं हम्माय दरिगां दाद्योजित्यं हम्माय वरिष्ठिं आहो अशूनां रवुचंहीं विस्फुखत्रीं अतिजं यात् यत् आप्रिनामि आशीम वो वहिवतीमस्ति उष्टास्ति उष्टावहमाय हयात आशा वरिष्ठाय यशम् बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। Thank you for invoking the blessings of God and for giving this program a reverent start. Good morning, everyone. On behalf of Bhavan's Leelavati Munshi College of Education, I, Mudita Jain, student of B.Ed first year, extend my heartiest welcome to our resource person, Dr. Sangeet Sharma, Dr. Gitika Datta, Principal, BLMCE, teachers, and my fellow mates to the conference on the topic Fostering Good Mental Health in Students and Educators in a Time of Crisis. Before we move ahead, let me enlighten you briefly about Bharatiya Vidya Bhavan. Bharatiya Vidya Bhavan, an internationally reputed institution dedicated to the promotion of education and Indian culture, is a charitable public trust founded by Kulpati Dr. Kanhaiya Lal Manik Lal Munshi on November 7, 1938. It is today an all-Indian intellectual, cultural, educational institution dedicated to the twin tasks of interpreting the age-old yet timeless message of our heritage by sticking to our cultural roots, along with encouraging its students to reach sky-high achievements by panning our wings and opening up to new advancements every day. Bhavan's Leelavati Munshi College of Education, BLMCE, is the newest addition in the galaxy of institutions under Bharatiya Vidya Bhavan. It has been established in 2016 with the recognition of NCTE and is affiliated to Guru Gobind Singh Indraprasth University and SCERT, Delhi. Bharatiya Vidya Bhavan, being a charitable institution and genuinely serving the cause of education, established this college in order to cater to the ever-expanding requirements of quality teachers and educators who can bring about a transformative change in the lives and personalities of their students. The current conference on fostering mental health among teachers and educators in times of crisis is a small step towards achieving this goal. Daniel J. Millman, popularly known as Dan Millman, an American author and lecturer in the personal development field, states that you don't have to control your thoughts. You just have to stop letting them control you.
Your mental health, your psychological, emotional, and social well being impacts every area of your life. Having positive mental health allows you to effectively deal with the daily stressors of life, communicate well with others, make healthy decisions, and live life to the fullest. But sometimes, struggle with mental illness and addiction can make the achievement of a healthy mental state impossible, especially to the students who need guidance on every step of their childhood. For further proceedings of the event, I would like to invite the Dr. Shaini Bhardwaj, Assistant Professor, BLMCE, for introducing our guests. Good morning, everyone. Our esteemed guest speaker for today, Professor Sangeet Sharma, is an acclaimed trainer for memory and neuro-linguistic programming in India. He has contributed significantly in the fields of memory mastery, neuro-linguistic programming, emotional intelligence, and other related areas of mind programming. Apart from being a trainer for neuro-linguistic programming, Professor Sangeet Sharma has authored a book titled Brain Bath, which has been a bestseller on Amazon. With a doctorate in education and over a decade of experience, he has been in close association with schools, colleges, and universities throughout the country, through which he has brought a positive change in the lives of over 5,000 students and teachers and people from various walks of life. Thank you so much for joining us today, sir. We look forward to drawing a lot from you in this session. थैंक यू मैम, थैंक यू। गुड मॉर्निंग और नमस्कार आप सभी को। सबसे पहले प्रिंसिपल मैम डॉक्टर गीतिका दत्ता मैम का बहुत शुक्रगुजार हूं मैं कि इतने बढ़िया टॉपिक पर मुझे बोलने का मौका दिया और आप सबके साथ बात करने का मौका दिया। आप बस मुझे एक बार बता दीजिए आपको आवाज सही आ रही है तो हम शुरू करते हैं आज का सेशन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक रिक्वेस्ट मेरी और है आपसे, अगर आप अपना माइक म्यूट रखें और कैमरा ऑन कर पाए तो सही रहेगा। अगर आप कर सकते हैं, जो भी कर सकते हो ऐसा करें, लगना चाहिए हम सामने सामने हैं और मुझे पता भी लगे कि आप तक बात पहुंच रही है। तो जैसा कि हम बात कर ही रहे थे कि मेंटल हेल्थ के बारे में, कि मेंटल हेल्थ एक ऐसा एक विषय है, ऐसा एक टॉपिक है जिस पर खुलकर बात नहीं होती। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया का नाम, दुर्भाग्य से ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर इंडिया का नाम यूएसए, चाइना, इन कंट्री के साथ लिया जाता है मेंटल हेल्थ के इश्यू के मामले में। मेंटल हेल्थ के बारे में सबसे बड़ी दिक्कत हमारे यहाँ पर क्या है कि अगर मुझे फीवर है तो मैं बड़े उसको अच्छे लाउडली बताऊंगा, सबको बताऊंगा कि मुझे बुखार है यार, आज मैं नहीं आ सकता कॉलेज में, आज ये दिक्कत है वो दिक्कत है। लेकिन जैसे कोई मेंटल हेल्थ का इश्यू आता है तो मुझे लगता है कि मैं किसी को बताऊंगा तो उसे लगेगा कि यार मैं मतलब पागल हो गया हूँ, या मैं चीजों को समझ नहीं पा रहा हूँ, या मैं एजुकेटेड नहीं हूँ अगर मैं ये बोलता हूँ। तो इस वजह से क्या होता है, एक स्टडी के हिसाब से अभी तक ये पता लगा कि इंडिया में तकरीबन 7% ऐसे लोग हैं जिनको सीरियस मेंटल हेल्थ के इशू है। और आप इससे खुश मत होना कि सिर्फ 7% है, ये 7% वो है जिन्होंने बता दिया। बहुत से ऐसे हैं जो हमारे बीच में भी हो सकते हैं, हम जानते भी हो लेकिन हमें पता ही नहीं है, उनको भी नहीं पता है क्योंकि अवेयरनेस की बड़ी कमी है। और ये तो मैम ने इतना अच्छा टॉपिक आप सबके लिए सेलेक्ट किया क्योंकि आपको टीचर बनना है। और टीचर क्या है, टीचर अकेला नहीं होता, उसके साथ पूरी एक जनरेशन ट्रेवल करती है उसकी लाइफ में। आप एक क्लास को पढ़ाओगे तो अगर मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है तो हजारों लोगों की लाइफ तक मैं पहुंच गया, चाहे मैं उसे पॉजिटिव तरीके से पहुंचाऊं या मैं नेगेटिव तरीके से पहुंचाऊं। पर एक टीचर को आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। आप जो बोलते हैं बच्चे के ऊपर उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर किसी भी चीज को आप देखो कि जो उसे ड्राइव करने वाला है, ड्राइवर है जो, अगर वो सही नहीं है तो फिर गाड़ी की और उसमें बैठी सवारी की जो दिक्कतें हैं बढ़ जाती है। तो टीचर एक तरह से बच्चों की लाइफ को गाइड करता है। अगर उसके मेंटल हेल्थ के इशू को वो नहीं पकड़ पा रहा है या उसे नहीं वो कंट्रोल कर पा रहा है तो ज्यादा दिक्कत आएगी। तो आप सबके लिए तो आज का सेशन ज्यादा जरूरी है। समय लिमिटेड है, मैं कोशिश करूंगा आपको कोई भी बुकिश बातें ना बताऊं, मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड करके चीजें बताऊं। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप उसके बाद सवाल पूछेंगे अपनी लाइफ से रिलेटेड, या जो भी आपको मेरे पूरे सेशन के टाइम पर लगेगा कि हाँ ये मुझे समझ में आया, इस पर मैं और पूछना चाहता हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से पूछिए। सबसे पहले शुरू करते हैं मेंटल हेल्थ या हमारे दिमाग में आई हुई नेगेटिविटी, खराब मेंटल हेल्थ या नेगेटिविटी कैसे हमें परेशान करती है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक एग्जांपल देता हूं।
मान लेते हैं कि मैंने एक पेयर खरीदा शूज का, बहुत अच्छा ब्रांडेड बिल्कुल, जिसको मतलब ये कहिए कि 10, 12, 20, 50 हजार का, दिखने में भी बहुत अच्छा है और कंफर्ट भी बहुत अच्छा है उसका। मैंने वो पहन लिया, लेकिन गलती से मेरे उस शूज के पेयर में एक कंकड़ आ गई, छोटी सी कंकड़ पत्थर कुछ आ गया। अब आप बताइए क्या मेरा चलना आसान होगा कि मुश्किल होगा? मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल होगा? अब वो कितना भी अच्छा था, कितना भी कंफर्ट था, लेकिन वो छोटी सी जो कंकड़ है ना, वो मेरे पूरे रास्ते को खराब कर देगी। तो ये छोटी सी जो कंकड़ है ना, ये आपके दिमाग में आई हुई कोई नेगेटिविटी हो सकती है। आप भले कितने अच्छे दिखते हैं, आप कितने अच्छे कपड़े पहनते हैं, आप कितनी अच्छी गाड़ी में चलते हैं, आप कितने अच्छे नौकरी पर जाते हैं, कितना अच्छा मोबाइल यूज करते हैं, अगर ये अंदर एक नेगेटिविटी रूपी कंकड़ चला गया ना, तो हमारे जीवन को ये मुश्किल कर देता है। और यहीं से हमें सबसे पहले तो ये अवेयरनेस लेकर आनी है कि क्या सच में ऐसा हुआ है। पहले तो स्वीकृति होती है, किसी भी चीज को आप स्वीकार कर लेते हैं ना, उसका पेन कम हो जाता है। पहली टेक्निक और पहला अगर मैं आपसे सूत्र शेयर करूं इसका मेंटल हेल्थ का, वो क्या है? स्वीकृति। आप अगर किसी चीज को स्वीकार कर लेंगे ना, तो उसके बाद आपका दिमाग उसके पेन को कम कर देगा। हम एक्चुअली में करते क्या है, हम एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच में फंसे रहते हैं, जिस पर हम आज डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हमें समझ में आया कि हमारे जीवन में नेगेटिविटी उसी कंकड़ के जैसी है, चाहे कितने अच्छे जूते पहन लीजिए, कितना आप अच्छे रास्ते पर चल लीजिए, लेकिन ये कंकड़ आपको परेशान करता ही रहेगा। तो आज हम सबसे पहले तो उसी को देखते हैं, आपका दिमाग काम कैसे करता है। देखिए, डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ इशू दो तरह के होते हैं। एक क्लिनिकल होता है, क्लिनिकल के लिए तो बहुत सारे और रीजन हो सकते हैं, वो फिजिकल एग्जिस्टेंस से संबंधित है हमारी। लेकिन जो इसके अलावा स्ट्रेस है या फीलिंग डिप्रेस टाइप की जो है कि भाई मुझे लग रहा है कि मैं डिप्रेशन की तरफ जा रहा हूँ, या मुझे कोई चिंता है, नेगेटिविटी है, वो हमारे विचारों की बात है, हमारे सोचने के तरीके की बात है। तो दिमाग सोचता कैसे है, काम कैसे करता है, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। अभी आप जहां भी बैठे हैं, एक बार के लिए अपनी चारों तरफ देखिए और मुझे फटाफट 5 सेकंड में रेड कलर की कितनी चीजें हैं आपके रूम में, मुझे बताइए जल्दी से, फटाफट देखिए, जल्दी से बताइए। चलिए टाइम खत्म हो गया, बताइए मुझे, कौन बता, एक दो बच्चे बताते मुझे, रेड कलर की कितनी चीज? अच्छा ठीक है, ठीक है, जितनी भी थी, ठीक है, ठीक है। अब दूसरी चीज मुझे जवाब दीजिए, जब आपका ध्यान रेड पर था तो क्या कोई दूसरा कलर भी आपको हाईलाइट हुआ, या आप रेड पर ही फोकस कर रहे थे? रेड पर था ना फोकस, क्योंकि हम रेड को देख रहे थे सारी तरफ। इसका दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आपने कभी कोई मोबाइल खरीदना चाहा या कोई गाड़ी खरीदनी चाहिए, आपने थोड़ा सा बैठ के नेट पे उसे सर्च किया, उसके बाद क्या आपको सड़क पर वही गाड़ियां नहीं दिखती? अरे यार मैं बात कर रहा था, देखो ये गाड़ियां दिखने लग गई। ऐसा हुआ है किसी के साथ? बस हाथ हिला के बता दीजिए। भैया मोबाइल आपने कभी सर्च किया? होता है ऐसा। दूसरा एग्जांपल। तीसरी बात करते हैं, आपने कोई नया इंग्लिश का वर्ड सीख लिया, आज सीखा आपने, उसके बाद वही कोई न्यूज एंकर बोलने लग गया, वही कहीं न्यूज़पेपर में लिखा गया, उसी वर्ड की तरफ अब आपका बार बार ध्यान जा रहा है। तो ये क्या है आपके दिमाग का, ये इसके काम करने का तरीका है। अब मैं आपको इसका थोड़ा टेक्निकल पार्ट बता दूं कैसे काम होता है। हमारा दिमाग जब भी हम किसी चीज को देखते हैं, परसीव करते हैं अपने सेंसेस के जरिए, या तो सुनते हैं, देखते हैं, टच करते हैं, जैसे भी, उसमें से पहला काम वो क्या करता है, चीजों को डिलीट करता है, हटाता है। जैसे आपने रेड की तरफ देखा तो उसने बाकी सारी चीजें डिलीट की कि नहीं की? जैसे आपने गाड़ी पे सर्च किया कि मुझे तो क्रेटा लेनी है, आजकल बड़ी फेमस हो रखी है क्रेटा गाड़ी, कि मुझे वो लेनी है, तो अब आपके दिमाग ने बाकी सारी गाड़ियां हटा दी सड़क पे से, आपका फोकस, मतलब सड़क पे है, आपके फोकस में से हटा दी और आपका सिर्फ उस गाड़ी पे फोकस है। इसलिए आप क्या बोलते हो फिर, देखो यार ये गाड़ी कितनी चल गई ना, मैंने आज इसके बारे में देखा था, यही दिख रही है न्यूज़पेपर में, उसी का एड आपको दिखने लग गया। आपने नया कोई वर्ड सीखा, वही आपको दिखने लग गया न्यूज़पेपर में। तो पहला काम ये क्या करता है, डिलीट करता है चीजों को, फिल्टर करता है डिलीट करके। अब क्या डिलीट करता है, यहां ध्यान से समझना, क्या डिलीट करता है मेरा दिमाग, उसी से मेरी लाइफ बनती है। कैसे बनती है? अगर आपके दिमाग ने विदाउट अवेयरनेस, बेहोशी में, इंपल्सिव होके वो चीज डिलीट कर दी जो मेरे फेवर की थी, तो मेरी लाइफ क्या होगी, खराब हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इस पे अपना कंट्रोल ले लूं और मैं अपने अवेयरनेस के साथ वो चीजें डिलीट करूं जो मेरे फेवर में नहीं थी, तो मेरी लाइफ क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। लेकिन होता उल्टा है। अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देके बताता हूं। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है,
आपके साथ उसने महीने के 30 दिन, आज हम तकरीबन लास्ट में बैठे हैं, ईयर के भी और मंथ के भी, उसने बहुत अच्छा बिहेवियर किया, लेकिन 31वें दिन आकर उसने एक कुछ गलत कर दिया। अब लेमैन अप्रोच में कहूं तो कायदे से आपका दिमाग क्या करेगा, उसकी एक दिन की गलती तो सेव कर लेगा और उसकी 29-30 दिन की अच्छाइयां को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। होना क्या चाहिए था, वो एक दिन की गलती हम डिलीट करते हैं और वो इतनी अच्छाई की क्वांटिटी जबकि ज्यादा है, पर वो डिलीट कर दी। क्यों किया उसने ऐसा, विदाउट अवेयरनेस। हमें जानकारी नहीं थी ना कि ऐसा करता है, हमें लगा यही तो सच है। नहीं, ये सच नहीं है, ये हमने सीखा है सोसाइटी में। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं आपके अंदर इस पूरे सेशन में हम मान लो 1 घंटे बात करेंगे, मैंने आपको बहुत सारी अच्छी बातें बताई, पर कोई एक बात हो गई जो मैंने गलत बोल दी, तो ज्यादातर केस में क्या होता है, वो एक बात तो सेव रह जाएगी और सारी अच्छाइयां, अच्छी बातें डिलीट हो जाएंगी। तो पहला काम आपको क्या करना है, ये डिलीट करने का जो काम है ये अवेयरनेस के साथ करना है। अवेयरनेस के साथ कैसे करना है, किसी भी बिहेवियर में इंपल्सिव होकर काम नहीं करना, कभी भी आपको रिएक्शन के लिए कुछ नहीं करना। आपको पहले सोचना है कि जो मैं इस टाइम पर करने जा रहा हूं या मैं करने जा रही हूं, उसमें मेरा सबसे ज्यादा नुकसान और फायदा किस बिहेवियर में है। ध्यान दीजिए, आपके पास एक इवेंट में मल्टीपल चॉइसेस रहती है बिहेवियर करने की, लेकिन ज्यादातर केस में हम 1-2 पर ही अटक जाते हैं। चॉइसेस बहुत सारी रहती है। जैसे अभी लॉकडाउन लगा तो हमें समझ में आया कि मीट से भी क्लास ली जा सकती है, जूम से भी क्लास ली जा सकती है, जबकि ये चॉइस तो पहले भी थी, लेकिन जब तक कुछ मजबूरी नहीं आई हमने इसको एक्सप्लोर किया ही नहीं था। तो वैसे ही आपके जीवन में कई बार हम क्या करते हैं, अपने जीवन में मान लो 5 गलत इवेंट हो गए, हम उनको तो सेव रखते हैं, सबसे ऊपर फाइल रहेगी उनकी, और बाकी जो अच्छे इवेंट थे वो ट्रैश फोल्डर में पड़े रहते हैं, उनको हम याद भी नहीं करते। इसीलिए कि अभी आप किसी इंसान से पूछोगे एकदम से बताओ आपके लाइफ की 5 अचीवमेंट क्या है, बड़ी मुश्किल आती है बताने में। अगर आपसे कोई पूछ रहे एकदम से बताओ आपके साथ 5 गलत चीजें क्या हुई है, तो हम बता देते हैं कि इनके 5 पर भी नहीं रुकते, हम 7, 8, 9 बता देंगे। ये क्यों हुआ, क्योंकि हम जो डिलीट करने का काम है अपने दिमाग का वो उसे करने दे रहे हैं। और हमारे माइंड के बारे में एक बड़ी अच्छी बात है कि ये बहुत अच्छा सेवक है, बहुत अच्छा सर्वेंट है, लेकिन ये बहुत खराब मालिक है। यानी अगर ये आपको चलाने लग जाए तो फिर ये बहुत खराब है, पर अगर आप इसको चलाने लग जाओ तो ये बहुत आपके काम आ सकता है। तो पहला काम हमें क्या करना है, डिलीट करना है, लेकिन अवेयरनेस के साथ। और ये चीज आपके हर रिलेशनशिप में, आपकी लाइफ की हर बात में आपके काम आ सकती है। मान लेते हैं सिंपल सा एग्जांपल, आप इंटरव्यू देने के लिए गए, आप घर से निकले, बराबर से कोई रिक्शा वाला निकला, गलती से उसने पानी में अब उसका टायर गया और सारा आपके ऊपर आ गया पानी वो। अब ये क्या हुआ, एक इवेंट हुआ, इसमें से डिलीट होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन क्या डिलीट होगा, ये विदाउट अवेयरनेस और अवेयरनेस से फर्क हो जाएगा। अगर तो विदाउट अवेयरनेस डिलीट हुआ तो डिलीट करके मैं क्या करूंगा, झगड़ा शुरू कर दूंगा, मेरे कपड़े खराब कर दिए, तुम्हें पता नहीं मुझे कितना जरूरी इंटरव्यू में जाना था, ये करना था, वो करना था। लेकिन मैं अवेयरनेस के साथ अगर सोचूं तो मैं ये भी तो सोच सकता हूं कि चलो ठीक है, चोट नहीं लगी मुझे, पानी तो लगा है, कपड़े पे तो लगा है, चेंज हो सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन उतना सोचने के लिए क्या चाहिए, अवेयरनेस चाहिए, जिसकी बुद्ध बात करते थे, जिसकी महावीर बात करते थे, जिसकी कृष्ण बात करते थे, जिसकी सबने बात की है, दैट इज अवेयरनेस, जागरूकता। जब भी आप कोई बिहेवियर करने चलो तो सबसे पहले अपने आप को देखो, क्या ये मेरा अवेयरनेस के साथ बिहेवियर है या मैं इंपल्सिव होके बेहोशी में इस काम को कर रहा हूं। तो डिलीट करना मेरे हाथ में होना चाहिए। आपकी लाइफ में अभी भी अगर आप देखेंगे कई इवेंट ऐसे हैं जो गलत हुए होंगे, मैं बिल्कुल जज नहीं कर रहा आपकी लाइफ, लेकिन उसके साथ एक सच और है कि बहुत से इवेंट ऐसे भी हैं जो अच्छे हुए होंगे। अब आप दोनों में से चॉइस लीजिए, कौन से इवेंट को याद करना आपके जीवन की क्वालिटी को इंप्रूव करेगा, आपकी हेल्थ को इंप्रूव करेगा, आपके रिलेशनशिप को इंप्रूव करेगा। ये आपको चॉइस करनी है, दोनों चॉइस आपके पास है, दोनों में से आप क्या चुनते हैं, इसी से आपका जीवन बनेगा। तो पहली चीज, पहला काम ये क्या करता है, डिलीट करता है। दूसरा काम ये क्या करता है, डिस्टोर्शन करता है, यानी ट्विस्ट कर देता है, चीजों को बदल देता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं अभी आप में से किसी को उठा के बोल दूं कि भाई मैंने आपको देख लिया, मैंने माइंड ट्रेनिंग सीख रखी है, मैं थोड़ा जानता हूं माइंड के बारे में, कैसे काम करते हैं, तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते।
तुम लाइफ में एवरेज रहोगे। मान लो मैंने ये स्टेटमेंट दी, अब ये तो एक इवेंट था, इसको डिलीट भी किया जा सकता है, अबे छोड़ो यार तुम्हें क्या पता मेरी लाइफ का, मैं अपना काम करूंगा, ये भी हो सकता है। दूसरा डिस्टोर्शन भी हो सकता है, क्या? जब भी मैं इट मीन्स के बाद कुछ बोलता हूं वो मेरी अपनी सोच होती है, उससे पहले होता है फैक्ट जो हुआ है, और इट मीन्स के बाद आता है ओपिनियन जो मैंने समझा है। मैं क्या बोल सकता हूँ कि एक ट्रेनर आए थे, बता रहे थे कि माइंड ट्रेनर है, उन्होंने मुझे बोला कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, मेरे एक टीचर ने भी बहुत पहले बोला था कि तुम कुछ नहीं कर सकते, मेरे पापा भी डांटते हुए यही बोलते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, और करके सारी कैलकुलेशन इट मीन्स मैं कुछ नहीं कर सकता, ये एक स्टेटमेंट आ सकती है। और दूसरी भी तो आ सकती है ना कि एक ट्रेनर ने मुझे बोला था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे को सब लोग बोलते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, इट मीन्स अब मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे कुछ बड़ा करके दिखाना है और मुझे इनका नंबर रखना है, मैं इनको बताऊंगा कि देखो मैंने कितना बड़ी अचीवमेंट ली है। दोनों पॉसिबल है ना, लेकिन दोनों कब होंगे, आपके कंट्रोल में कब होंगे, जब आप अवेयर रहेंगे। तो डिस्टोर्शन दोनों तरफ से हो सकता है, कोई आपको अगर चैलेंज कर दे, कोई आपकी अगर इंसल्ट कर दे, तो आप उसे ये भी ले सकते हो इट मीन्स अब मुझसे कुछ नहीं होगा। आप ये भी तो कह सकते हो इट मीन्स आज के बाद तो मुझे ज्यादा मेहनत करनी है, अब तो मुझे और ज्यादा चैलेंज को फेस करना है। जैसे अभी कोरोना का टाइम पिछले 1.5-2 साल से हम देख रहे हैं, बहुत सारी चीजें गलत हो रही है जीवन में, किसी की नौकरी गई है, बहुत चीजें हो रही है। अब डिस्टोर्शन वहां भी लग रहा है ना, डिस्टोर्शन जो आप लगाओगे, जो इट मीन्स के बाद आप स्टेटमेंट दोगे, वो बिल्कुल आपकी लाइफ के साथ रिलेट करती है। आपकी लाइफ कैसे चलती है, डिलीट और डिस्टोर्शन समझ में आया आपको? अगर आया तो बता दीजिए। यस सर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि इनका लाइफ पर फर्क क्या पड़ता है। आपकी लाइफ में हम किसके लिए सारी भागदौड़ कर रहे हैं? क्यों मैं सुबह तैयार होकर आपके सामने बैठा हूं? क्यों आप सुबह तैयार होकर सेशन के लिए बैठे हैं? क्यों आप इन्वेस्ट करके पैसा पढ़ाई करते हैं? रिजल्ट के लिए, डेस्टिनी के लिए, यही तो करते हैं ना। हमें कुछ आउटकम चाहिए, लेकिन आपको पता है हमारा फोकस थोड़ा सा चेंज है। जीवन में हम जो भी मीनिंग देते हैं चीजों को, मीनिंग कैसे देते हैं? डिलीट करके और डिस्टोर्शन करके। जो भी इवेंट हुआ उसमें कुछ नहीं है, हमने क्या मीनिंग दिया है उसमें बहुत कुछ है। जो भी मैंने मीनिंग दिया वो मुझे लीड करेगा एक फीलिंग पर। मैंने जो भी मीनिंग दिया वो मुझे कहां लेकर जाएगा? एक फीलिंग पर। अगर मैंने मीनिंग दिया इट मीन्स अब मैं कुछ नहीं कर सकता, एक अलग तरह की फीलिंग। इट मीन्स आज के बाद मुझे ज्यादा मेहनत करनी है, एक अलग तरह की फीलिंग। तो जो भी मैं जीवन में चीजों को मीनिंग देता हूं, हमारी लाइफ क्या है? मीनिंग ही तो है जो हम सारा दिन देते रहते हैं चीजों को। मीनिंग मुझे लेकर जाता है फीलिंग पर, और फीलिंग मुझे लेकर जाती है बिहेवियर पर। अगर मैंने मीनिंग दिया था मैं कुछ नहीं कर सकता, फीलिंग आई नेगेटिव, बिहेवियर भी कैसा होगा? नेगेटिव। अगर मैंने मीनिंग दिया इट मीन्स आज के बाद मुझे ज्यादा मेहनत करनी है, फीलिंग भी कैसी आई? मोटिवेशन, और बिहेवियर भी उसी से रिलेटेड आएगा। और जो बिहेवियर है वो देता है रिजल्ट। तो मीनिंग, फीलिंग, बिहेवियर, रिजल्ट, और इसमें चारों में से आपको पता है आपका कंट्रोल सिर्फ किस पे है? मीनिंग पे। क्योंकि बिहेवियर पे इसलिए नहीं है, वो किसके अंडर काम कर रहा है? फीलिंग के। और फीलिंग पर इसलिए नहीं है, वो किसके अंडर काम कर रही है? मीनिंग के अंडर। हम जब बोलते हैं ना कि यार मैं बिहेवियर सुधारना चाहता हूं, बिहेवियर तो बाहर की बात है, जो सबसे उसकी रूट है, जो जड़ है, वो आपके मीनिंग है। अगर आप आज के सेशन को मीनिंग ये दे दो कि यार हो सकता है कुछ ऐसा बनाया हो यूनिवर्स ने कनेक्शन की, साल के लास्ट दिन में आके एक सेशन हो रहा है, शायद मेरा अगला साल कुछ अच्छा होने वाला है, मैं यहां से कुछ सीख के जाता हूं। अगर तो ये मीनिंग दिया, एक अलग फीलिंग, एक अलग फीलिंग, अलग एक्शन यानी बिहेवियर, और एक अलग रिजल्ट। अब आप एक बार के लिए सोच के देखिए, आपके जीवन में जितनी भी चीजें, रिजल्ट जहां पर आप ढूंढ रहे हैं, वो कनेक्शन, बिहेवियर, उससे पहले फीलिंग, उससे पहले मीनिंग का बना हुआ है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अभी आपके लाइफ में कोई ना कोई चैलेंज होगा, जरूर है या नहीं? होगा, थोड़ा बहुत सबके लाइफ में होता है। क्या आप ये मानते हैं कि वो चैलेंज, वो प्रॉब्लम, वो समस्या सिर्फ आपकी लाइफ में है? बताइए मुझे। नहीं मानते ना? मेरे अलावा वो और भी लाखों लोगों के लाइफ में हो सकती है, मानते हैं? दूसरी बात, क्या सभी एक लेवल पर दुखी है? अगर मैं 10 से मार्किंग करनी शुरू करूं तो क्या सभी 10 आउट ऑफ 10 दुखी है? नहीं ना। कोई हो सकता है 1 हो, कोई हो सकता है 5 हो, कोई हो सकता है 9 हो, और कोई हो सकता है 10 में से 20 भी हो। तो ये जो अलग अलग, अगर तो इवेंट में पावर होती, हम बोल देते हैं ना, अरे यार मेरा मूड खराब था, मेरे साथ ऐसा हुआ, अगर वो जो ऐसे होने में पावर होती,
फिर तो उस सिचुएशन के बाद सबका दुख समान होना चाहिए था, एक होना चाहिए था। अगर एक इवेंट एक आदमी को तो डिप्रेस कर रहा है, दूसरे आदमी को वो सेलिब्रिटी बना रहा है, बनाता है ना किसी के। अब किसी को भी पढ़ के देखना जो लोग सफल हुए हैं, आपको पता लगेगा उनके जीवन में उतना ही बड़ा कोई बुरा इवेंट हुआ होगा, लेकिन उसके बाद वो सफल हो गए। दूसरा आदमी उसी को 10 साल से गा रहा है, अरे तुम्हें क्या पता मेरे साथ क्या हुआ, तुम्हें क्या पता मेरे साथ क्या हुआ। तो दोनों में अंतर समझ में आया क्या है? डिलीट डिस्टोर्शन, दैट इज मीनिंग। इनके बाद बनता है मीनिंग। जो मीनिंग दे रहा है ना, उसी से फीलिंग, उसी से एक्शन, उसी से रिजल्ट आ रहे हैं। समझ में आई आपको यहां तक की बात? कोई डाउट इसमें? तो आज के बाद हमें पहला फोकस किस पे करना है, मैं क्या मीनिंग दे रहा हूं। मान लेते कल को आपको कोई टीचर डांट दे आपका, अब आप उसे एक मीनिंग दे सकते हैं, मेरी इंसल्ट हो गई। जैसे आपने मीनिंग दिया ये, फीलिंग अलग, एक्शन अलग, रिजल्ट अलग। लेकिन अगर आप मीनिंग ये दे दे, यार इनको कौन सा मुझसे कोई फायदा है, मेरे फेवर में, मेरे भलाई के लिए तो कुछ बोला होगा, 2 साल बाद मैं चला जाऊंगा, और बच्चे आएंगे मुझसे पहले और आए होंगे। बट अगर इतने बच्चों के बीच में मुझ पर ध्यान गया, मुझे कुछ बताया है, तो मुझे कुछ सुधार करना चाहिए। अगर ये मीनिंग, अलग फीलिंग, अलग एक्शन, अलग रिजल्ट। समझ गए आप ये सारी चीजें? तो आपको ये करना है। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, फिर उसके साथ रिलेटेड चीजें आपको बताऊंगा। सीधे बैठिए एक बार के लिए आप सभी, सीधे बैठिए। मैं आपको 2-3 चीजें बोलूंगा, बस आपको वो करनी है। हम सीधे बैठ गए। दूसरा, आपको हल्का सा ऊपर देखना है, गर्दन ऊपर नहीं करनी, बस हल्की सी आईज ऊपर कीजिए और स्माइल कीजिए अच्छे से, बिना घबराए। जितना हो सकता है अच्छे से स्माइल कीजिए। 3 काम साथ में कर रहे हैं आप। सीधे बैठे, ऊपर देख रहे हैं, स्माइल कीजिए थोड़ी, और अपने लिए अच्छी बात सोचिए कुछ इस टाइम पे, अपने बारे में, अपनी तारीफ कीजिए, अपनी कोई अचीवमेंट याद कीजिए इस टाइम पे, और स्माइल कीजिए, स्माइल कीजिए। और अब टेंशन लेकर दिखाइए स्माइल करते करते, स्माइल कीजिए और टेंशन लेकर दिखाइए। नहीं आ रही ना, रिलैक्स, नहीं आ रही थी, जबकि टेंशन तो है। ऐसा तो नहीं कि टेंशन खत्म हो गई। अब ये कैसे काम करती है आपके दिमाग के अंदर चीजें, वो बताता हूं। आपका जो दिमाग है ना, माइंड, वो कम्युनिकेट करता है आपके शरीर के साथ। मतलब आपने अगर देखा होगा, जब कोई आदमी डिप्रेस होता है, परेशान होता है, तो वो कभी ऐसा थोड़ी ना बोलता है, यार आज का दिन बहुत खराब गया, आज तो बहुत नुकसान हो गया मेरा, नहीं बोलता ना। वो कैसे बोलता है? नीचे देख के बोलता है, ये कंधे थोड़े झुका के बोलता है, और उसकी वॉइस की टोन भी थोड़ी सी डाउन होती है, यार आज ये हो गया। इसका अपोजिट भी सच है। अगर आपको कोई बड़ी अचीवमेंट मिल जाए, जिसका आपको ख्वाब था, ड्रीम था, वो काम हो जाए आपका, तो आप ऐसे थोड़ी बताओगे, यार पता है आज ना मुझे गोल्ड मेडल मिल गया बीएड में, और नहीं बताओगे ना। कैसे बताओगे? अब ऐसे बताओगे। तो जैसे मेरा जो ये फिजिकल एग्जिस्टेंस है, मेरा शरीर, जैसे मैं इसे बदलता हूं, मेरे दिमाग में जाने वाले मैसेज भी बदल जाते हैं। तो जो मेरी टेंशन की अलमीरा थी, अलमीरा एक सिंबॉलिक वर्ड है, दैट इज न्यूरॉन्स, जो आपके न्यूरल कनेक्शन थे, कौन से? टेंशन वाले, वो बंद हो जाते हैं और तुरंत दूसरे खुल जाते हैं। और ये कब करना है हमें इस एक्सरसाइज को? जब आपको एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद नेगेटिविटी आती जा रही है दिमाग में, तुरंत उसके पैटर्न्स को ब्रेक करने के लिए सीधे बैठिए, ऊपर देखिए, स्माइल कीजिए, और कोई भी अपनी अचीवमेंट याद कीजिए, वो कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। वो जरूरी क्यों है? क्योंकि जब भी आप कोई सोल्यूशन ढूंढते हैं, उसके लिए आपका माइंडसेट वैसा होना जरूरी है। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं आपको। हम सब एक बस में बैठे हैं मान लेते हैं, और वो बस खराब हो जाए, और मैं आप सबको बोलूं कि चलो ठीक है, धक्का लगाते हैं, अपनी अपनी सीट से सब धक्का लगाओ, बस को चलाएंगे, चल जाएगी बस? अपनी अपनी सीट पे बैठे हैं हम, और उस पर धक्का लगा रहे हैं अपनी सीट से, नहीं चलेगी ना। क्या करना पड़ेगा हमें? बस से उतरना पड़ेगा, और उतर के बाहर से धक्का लगाना पड़ेगा। यही आपको तब करना होता है जब आप नेगेटिविटी में, प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। पहले उससे उतरिए और फिर बाहर से सोचिए कि अब मैं क्या कर सकता हूं। हमको सोल्यूशन क्यों नहीं आता? आपने कभी देखा है आपका कोई दोस्त आपसे कितनी बड़ी समस्या डिस्कस कर ले, आप उसको सोल्यूशन बता देते हो, अरे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कर लो। लेकिन जैसे वो मेरे ऊपर आती है, अपने ऊपर आती है, तो हम नहीं बता पाते। यहाँ क्यों नहीं बता पाते? क्योंकि हम उसी बस के अंदर बैठ के सोचते हैं धक्का मारने की। पहले हमें उससे डीअटैच होना पड़ता है। मैं पहले क्या सोचूं कि ठीक है, मान लो मेरी लाइफ में कोई समस्या आ गई, मैं सोचूं कि यार अगर ये मेरे किसी दोस्त की लाइफ में आई होती और उसने मुझसे सोल्यूशन मांगा होता, तो मैं उसे क्या देता। जैसे मैं ये सोचूंगा, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अपने आप को उससे डीअटैच कर रहा हूं, डिसएसोसिएट कर रहा हूं उस दिक्कत से। जब तक मैं उसमें इन्वॉल्व था,
तब तक मैं उस बस के अंदर बैठा था और उसी में धक्का मारने की कोशिश कर रहा था। जैसे मैंने थोड़ी दूरी बनाई तो अब मुझे विजन थोड़ा सा दिखने लग गया कि अच्छा ठीक है, मुझे अब ये मैं उसको बताता तो इनमें से कुछ चीजें मैं भी कर सकता हूँ। इसे बोलते हैं सेल्फ कम्युनिकेशन, और इसका बड़ा अहम योगदान है आपकी मेंटल हेल्थ में। देखिए, हमारी पूरी जो सिस्टम बना हुआ है वो कुछ ऐसा बना हुआ है कि हमें जब भी कम्युनिकेशन शब्द सुनता है, संवाद जब सुनता है, हमें लगता है दूसरों से बात करने के बारे में बात है ये, यानी मैं आप लोगों से कैसे बात कर रहा हूं, दैट इज कम्युनिकेशन। वो कम्युनिकेशन का छोटा सा हिस्सा है। कितनी बात कर सकता हूं मैं आपके साथ या किसी के साथ भी, एक लिमिट तक, लेकिन अपने साथ अनलिमिटेड। पूरा दिन करते क्या है, हम अपने साथ बात ही तो करते हैं। यहां तक कि सोते हुए भी सपनों में हम अपने आप से बात करते हैं, और जागते हुए जब आप मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हो, खाली बैठे हो, गाने भी सुनते हो तो आप अपने आप से बात कर रहे हो उस टाइम पे। तो यहाँ पे क्या देखना है हमें, मेरा सेल्फ कम्युनिकेशन कैसा है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ इस बात को। अगर मान लो आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान, आपके आसपास नजर दौड़ाइए, आपको कोई ऐसा इंसान दिखता है जिसे देखकर आपको लगता है कि यार ये यहाँ कैसे पहुंच गया, इससे तो टैलेंटेड लोग हैं जो पीछे है, इसको ये कैसे मिल गई चीज, इसने कैसे इतनी अचीवमेंट ले ली। कभी लगा किसी को देखकर ऐसा? वो कोई सेलिब्रिटी भी हो सकता है, कोई दोस्त भी हो सकता है, रिश्तेदार भी हो सकता है, लगता होगा ना किसी को देख के यार ये यहाँ कैसे पहुंच गया, लगा कभी? जी। तो आपको पता है वो क्यों पहुंच गया? हम उसे कितना बोलते रहे तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, पर वो अपने आप को क्या बोल रहा था, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। सेल्फ कम्युनिकेशन उसे वहां तक पहुंचा गया। दूसरे आपसे क्या बोलते हैं आपके बारे में, उसका थोड़ा फर्क पड़ता है, ज्यादा फर्क पड़ता है आप अपने बारे में अपने आप को क्या बोलते हैं। और इसका दूसरा एग्जाम्पल भी सही है। आपको किसी इंसान को देखकर ये भी लगता होगा, और हो सकता है वो आप खुद भी हो, कि यार इसे तो बहुत आगे होना चाहिए था, ये अभी तक यहाँ क्यों है। वहां भी सेम वही बात है। लगता है ना किसी को देखकर यार ये तो इतना अच्छा गाता है, इसे तो एल्बम निकालनी चाहिए था अपनी, इसे तो यूट्यूबर होना चाहिए था, इसे तो किसी उसमें जाना चाहिए था कंपटीशन में। ये आपको लगता है, आप उसे बोल रहे हैं, वो अपने आप को क्या बोल रहे हैं, मेरे बस का कुछ नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मुझे तो नहीं आता। तो सेल्फ कम्युनिकेशन क्या है, उससे आपकी लाइफ बदलती है। तो मेंटल हेल्थ के जितने इशू, क्लिनिकल को छोड़ रहा हूं मैं, उनकी बात मैं करूंगा ही नहीं। जो डेली के जो हमारे इशू रहते हैं वो किसकी वजह से आते हैं, सेल्फ कम्युनिकेशन से। मैं अपने आप के बारे में क्या बता रहा हूँ, और मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको जो आपने भी कभी सुने होंगे। कई बार लोग आपको क्या बोलते हैं, देखा मैंने कहा था ना मेरे साथ हमेशा गलत होता है, हो गया ना, मैं बता रहा था ना तुमको, मेरी किस्मत खराब है, मुझे कोई नहीं समझेगा। वो सही कह रहा है, कि वो सारा दिन यही बता रहा था अपने आप को, यही बता रहा था अपने आप को, और उसने इतना बताया अपने आप को कि वो मैनिफेस्टेशन होना एक लाजमी था, एक बाय प्रोडक्ट था। कि हमारे जीवन में एफएम की तरह हमारा दिमाग काम करता है। कैसे करता है एफएम काम? मान लेते हैं मैंने अपने फोन में एफएम लगाया 95 पे, और उसमें गाना बज रहा था, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, और मैं इसे बड़े उससे सुन रहा था, दुख दर्द के अंदर डूब के। और तभी कोई आप में से मेरे पास आके बोलता है, अरे सर क्या सुन रहे हो, दो मुझे। और आपने उसे चेंज करके लगा दिया 104 पे, कोई और फ्रीक्वेंसी सेट कर दी उसकी, और वहां पे कोई अच्छा गाना बजने लगा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है टाइप को बढ़िया सा गाना बजने लग गया। अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या अभी भी इस एनवायरमेंट में वो मेरा जीवन कोरा कागज है या नहीं है? बताइए, चैट सेक्शन में बताइए, क्या अभी भी इस एनवायरमेंट में वो मेरा जीवन कोरा कागज है या नहीं है? यस, इंद्रजीत ने बताया, विष्णु ने बताया, यस, दोनों ने सही बोला। क्यों? वो तो है, फ्रीक्वेंसी तो मेरी चेंज हुई है ना भाई। आपके जीवन में मैं जो जहां से हमने शुरू की थी बात, नेगेटिविटी हो सकती है, पर आप किस फ्रीक्वेंसी पर हो, आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी साइड। अगर अभी कोई दूसरा 95 लगा ले इस रूम में बैठ के, तो उसे तो वही सुनेगा, यानी एनवायरमेंट में तो अभी भी वही है, लेकिन मैंने अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज की तो मेरी तरफ दूसरी चीजें आनी शुरू हो गई। आपने कभी नोटिस किया है, आपने बड़ी शिद्दत के साथ कोई एम बनाया, आपको वैसी ही चीजें दिखनी, वैसे लोग मिलने, वैसी किताबें मिलनी शुरू हो जाती है। क्यों? फ्रीक्वेंसी चेंज हुई। किसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हुई? आपकी हुई। और अगर मैं ये बोलता कि नहीं नहीं मुझे बड़ा खराब लग रहा है गाना सुनना, मेरा जीवन कोरा कागज बड़ा उदास कर रहा है, लेकिन मैं इसे सुनना तब बंद करूंगा जब एफएम वाले से चलाना बंद करेंगे, तो आप मुझे क्या बोलते हैं, यार ये थोड़ी ना है। वो आपके कंट्रोल में नहीं है, ये आपके कंट्रोल में है। तो यहां से एक टेक्निक निकली है, चेक योर कंट्रोल। यानी
आप देखिए मेरा नियंत्रण किस साइड है। क्या मैं लोगों को बदल सकता हूं, क्या मैं सिचुएशन बदल सकता हूं, या मैं खुद को बदल सकता हूं, अपनी सोच बदल सकता हूं। और आप देखेंगे किसी भी सिचुएशन में, मैं इस सेमिनार का एग्जांपल ले लेता हूं, आज इस वेबिनार में मेरा कंट्रोल किस साइड है, ये प्रेजेंटेशन देने में या आपका फीडबैक मेरे हाथ में है? बताइए क्या मेरे हाथ में है? मेरी प्रेजेंटेशन। और अगर मैं इसको तो देखूं ना, और मैं पूरा दिमाग लगा दूं यार बच्चे कैसा फीडबैक देंगे, मैम को क्या बोलेंगे मेरे बारे में, अगर मैंने इस पर फोकस कर दिया तो मेरे जो कंट्रोल की चीजें थी मैं उस पर फोकस नहीं कर पाऊंगा, और इस वजह से हो सकता है मैं अच्छा भी ना कर पाऊं। और यही बात आपके एग्जाम में, आपके इंटरव्यू में, आपका कंट्रोल किस पे है? आपकी तैयारी पे। सामने वाले पर तो आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग खोल के देखें, आपके जीवन में जो भी चीजें हो रही है, बहुत कम चीजें ऐसी है जिन पर आप सीधा कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। वेदर कंडीशन से लेकर और जितनी भी चीजें आ रही है, क्या मेरे कंट्रोल में है? मैं बोलूं कि यार मैं घर से तब निकलूंगा जब सर्दी खत्म हो जाएगी, बैठे रहो घर पे, आपके इंतजार में तो सर्दी खत्म नहीं होगी ना। लेकिन मुझे निकलने के लिए मैं क्या अपने लिए बढ़िया इंतजाम कर सकता हूँ, वो मेरे कंट्रोल में है। अभी देखो दोबारा से चल रहा है कि लॉकडाउन हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो क्या मेरे कंट्रोल में है कि मैं उस लॉकडाउन को रोक दूं? क्या मेरे कंट्रोल में है कि मैं उस वायरस को रोक दूं? नहीं। पर मेरे कंट्रोल में ये है कि मैं अपनी सेफ्टी कैसे करूं, और उस लॉकडाउन पीरियड को भी कैसे बेस्ट मैं अपनी लाइफ के लिए कन्वर्ट कर दूं, ये मेरे कंट्रोल में है। इसमें भी दो चॉइस है। एक तो ये है कि मैं सरकार को, सिस्टम को, वायरस को, इनको नेगेटिव बोलता रहूं, या फिर दूसरा ये है कि यार ये तो मेरे कंट्रोल में है ही नहीं, मैं ये देखता हूं मैं इस टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे कर सकता हूं। तो हमेशा देखिए, जब भी आपको लगे जीवन में कि यार ये चीज तो मेरे लाइफ में अच्छी नहीं हो रही है, सबसे पहले देखिए, डी अटैच होके देखिए मेरा कंट्रोल कहां पर है, मैं क्या कर सकता हूं, व्हाट कैन आई डू। बस उसे अच्छे से कर दीजिए। जो भी आप कर सकते हैं ना, उसमें दिल दिमाग दोनों लगा दीजिए। एक बार किसी सफल आदमी से पूछा गया कि सीक्रेट क्या है सफलता का, हैप्पीनेस का, उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया, साउंड बैलेंस बिटवीन हार्ट एंड माइंड। इसको दूसरे तरीके से बोलते हैं साउंड बैलेंस बिटवीन इमोशंस एंड लॉजिक्स। लाइफ में दोनों चीजों से चलते हैं हम, तर्क के साथ भी चलते हैं और इमोशंस के साथ भी चलते हैं। और इंसान के बारे में बोला जाता है कि वो एक ऐसा प्राणी है जो चलता इमोशंस के साथ है और जस्टिफाई लॉजिक्स के साथ करता है। यानी हमारे सारे काम होते इमोशन के साथ है, लेकिन हम उसे जस्टिफाई कैसे करते हैं? तर्क के साथ, लॉजिक्स के साथ। जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं, आपके जीवन में अभी बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिनको करने में आपको लगता होगा कि यार मैं उतना अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ जितना मैं करना चाहता हूँ। सुबह उठने की बात हो सकती है, पढ़ाई की बात हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। वो इसलिए है क्योंकि हमारे दिमाग के पास उस काम को करने के वाई यानी पर्पस का पता नहीं रहता, क्योंकि इमोशंस के साथ हम काम करते हैं। आप कभी भी देखिए, जिस दिन आपको अपने कॉलेज में आना है और आपका कोई ऐसा इवेंट है जो इमोशनली आपसे जुड़ा हुआ है, उस दिन आप जल्दी उठते भी हैं, तैयार भी होते हैं और आते भी हैं। तो ये इसको ढूंढिए कि मेरे जीवन के ये पर्पस क्या है, उन्हें इकट्ठा कीजिए। जहां डिमोटिवेशन आए, जहां आपको लगे कि चैलेंज आ रहा है, टेंशन आ रही है, तुरंत उनको देखिए कि मैं शुरू क्यों हुआ था। अक्सर ऐसा होता है कि आपने जर्नी स्टार्ट की, बीच में आकर एक टाइम ऐसा आता है सबकी लाइफ में जब उसे लगता है गिव अप कर देना चाहिए, नहीं हो रहा है काम वैसे। वहां पर आपको क्या देखना है? चेक योर कंट्रोल, कहां पर मेरा कंट्रोल है, और मैं शुरू क्यों हुआ था, मैंने ये काम करना क्यों चाहा था। तो ये आपको करना है। अब तक मैंने जितना बोला, कोई सवाल आपका है तो बताइए, फिर हम आगे एक दो टेक्निक और करते हैं। समझ में आ रहा है तो वो भी बता दीजिए। आप तक बात पहुंच रही है, चैट सेक्शन में बता दीजिए। मुझे बड़ा रहता है कि बात पहुंचनी चाहिए सीधे शब्दों में आप तक, तभी फायदा है इसका। जी ठीक है, तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद हम एक टेक्निक करेंगे। वो कहानी भी मेंटल हेल्थ से ही रिलेट करेगी। एक बार क्या हुआ, थैंक यू, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। एक बार क्या हुआ कि एक चित्रकार था, मूर्तिकार था, मूर्ति बनाता था पत्थर से। तो वो घूमने के लिए निकला, कहीं जाना था उसे। तो रास्ते में एक जंगल पड़ा, उस जंगल में वो पेड़ के नीचे रेस्ट करने लग गया बैठ के। तो उसका ध्यान पड़ता है एक पत्थर पर। तो आदमी, जब आर्टिस्ट जो टाइप के लोग होते हैं ना, वो हर जगह पे अपनी आर्ट को ढूंढने लगते हैं। जो कोई कवि होगा तो वो कहीं बैठ के कविता लिखना शुरू कर देगा। तो उस आर्टिस्ट को लगा यार चलो बैठा तो हूँ, पत्थर को उठा के कुछ तराश देता हूँ इसे। उसने अपने बैग से अपने वो हथौड़े छेनी निकाले, पत्थर को उठाया, जैसे उस पर पहली चोट मारी, पत्थर की आवाज आती है।
कि मुझे मत छेड़ो, मुझे क्यों मार रहे हो, मैं तो आराम से पड़ा था। तो बोलता है कि भैया देखो, मैं एक मूर्तिकार हूँ, बहुत अच्छी मूर्ति बनाता हूँ, तुम थोड़ी देर ये चोट सहन कर लो, मीठी चोट तुम्हें लगेगी, लेकिन तुम्हारे अंदर से एक मूर्त निकालता हूँ मैं बहुत अच्छी, और उसके बाद तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो बोलता है नहीं भैया, मुझे ये चोट नहीं चाहिए, मैं जैसा हूँ ठीक हूँ, मेरी लाइफ कट रही है, मुझे छोड़ दो। मूर्तिकार उन्हें समझाते हैं कि भाई सुनो मेरी बात, थोड़ी देर की चोट है, तुम्हारे अंदर से बहुत अच्छा कुछ निकलेगा। लेकिन वो नहीं मानता पत्थर, उसे छोड़ देते हैं, बराबर से दूसरा पत्थर उठाते हैं। उस पत्थर ने वो बात सुन ली थी कि ये कुछ बोल रहा था कि यार थोड़ी चोट सहन करनी पड़ेगी, और उस चोट से अगर आप निकल गए तो एक मूर्त बन जाओगे, बहुत अच्छा आप में से कुछ निकलेगा। तो उस पत्थर ने चुप होकर उसकी चोट को सहना शुरू किया कि देखते हैं क्या निकलता है, पड़े तो थे इतने सालों से, देख इस पर भी यकीन करके देख लेते हैं। तो उसने अपना चोट मारी, मीठी चोट जो हथौड़े की रहती है, थोड़ी देर बाद उसकी बड़ी अच्छी एक मूर्ति बन गई। तो चित्रकार ने देखा, बड़ा खुश हुआ वो मूर्तिकार, उसने उसे वहीं पे रखा और अपने रास्ते पर चला गया। 2-3 साल बाद दोबारा उस रास्ते से उसका आना हुआ, तो वो देखता है कि यार यहाँ तो पहले घना जंगल था, पेड़ थे, यहाँ लोग इतनी भीड़ बनाकर क्यों खड़े हैं। थोड़ा और नजदीक गया तो देखता है कि लोग लाइन लगाकर खड़े हैं, कोई जल हाथ में लेकर खड़ा है, फूल हाथ में लेकर खड़ा है। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार ऐसा क्या हो गया। और नजदीक गया तो देखा, जिस पत्थर को उसने तराश दिया था टाइम पास करने के लिए, उस पत्थर को लोगों ने क्या मान लिया, भगवान मान लिया, और उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। तो जैसे उसने पत्थर को देखा, पत्थर ने उसे देखा, पत्थर मुस्कुराया कि भाई तुम ठीक कह रहे थे, देखो मेरी कीमत कितनी बढ़ गई, पहले कोई पूछता नहीं था। तभी उसके दिमाग में आया कि यार वो दूसरा पत्थर कहाँ है, जिसको मैंने उठाया था पहले और वो मना कर गया था, उसका क्या हुआ। तो जैसे उसने नजर दौड़ाई तो वो पत्थर भी बराबर में पड़ा था, और लोग उसके ऊपर नारियल फोड़ रहे थे, यानी चोट उसे अब भी पड़ रही थी, और ये चोट अब उसके किसी काम की भी नहीं थी, क्योंकि इससे वो मूर्ति नहीं बनता। तो जीवन आपको ऐसे ही तराशता है, छोटे 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 आपके ऊपर हथौड़े मारता है। अगर आप उसे ये समझ लो कि ये मीनिंग क्या दो इसको, कि मैं पत्थर हूं और वो एक बड़ा मूर्तिकार है, कौन, ये यूनिवर्स, भगवान, परमात्मा, खुदा, जिसको भी आप मानते हो, कि उसकी ये चोट मुझे तराश देगी। अगर तो मीनिंग ये है, अलग फीलिंग, अलग बिहेवियर, अलग रिजल्ट। बट अगर मीनिंग ये है मेरे साथ ही क्यों, अलग फीलिंग, अलग रिजल्ट, अलग बिहेवियर, अलग रिजल्ट। तो जीवन में चैलेंज आएंगे, बहुत सारी चीजें आपके हिसाब से नहीं होगी, बहुत सारी दिक्कतें भी आएंगी, लेकिन आपके मीनिंग अगर आपके फेवर में है तो रिजल्ट हमेशा आपकी तरफ ही जाएगा। लास्ट में जिंदगी क्या है, 100 मीटर की रेस थोड़ी ना है, एक बार भागना है बस खत्म काम, नहीं। जीवन क्या है, एक मैराथन है, इसमें तो लगातार चलते रहना है, रुकना नहीं है, धीमे हो जाओ। कहा जाता है कि अगर आप गिर जाते हो तो कोशिश करो आप चलो, दौड़ने की कोशिश करो, दौड़ नहीं पाते चलने की कोशिश करो, चल भी नहीं पाते रेंगने की कोशिश करो, पड़े मत रहो। तो जीवन में बहुत सारी चीजें आएंगी जब आपको लगेगा कि यार मेरे साथ ही क्यों हुआ, बस वहां पर याद करना कि पहली बात तो मेरे नियंत्रण में बहुत सारी चीजें नहीं है। अगर ऐसा होता, अगर मान लो मेरे नियंत्रण में भगवान सब दे देता, तो बैलेंस बिगड़ जाता पूरे यूनिवर्स का। तो उसने क्या किया है, उसने बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया है, कुछ मेरे नियंत्रण से हो रहा है, कुछ आपके हिसाब से हो रहा है, कुछ उसके हिसाब से हो रहा है, इतने लोग हैं सबके हिसाब से थोड़ा थोड़ा कर दिया ताकि बैलेंस मेंटेन रहे। वो दिक्कत ये है कि मैं सोचता हूँ सब कुछ मेरे हिसाब से क्यों नहीं हुआ। ठीक है जी, यहां तक समझ में आया। अब एक टेक्निक और करते हैं, एक बार के लिए आप जिस भी हैंड से लिखते हैं, अगर आप राइट हैंडेड है तो लेफ्ट से लिखिए, कुछ भी, कोई भी 2 स्टेटमेंट लिखिए, अपने बारे में लिख लीजिए, कुछ भी 2 आप सेंटेंस लिखिए अलग हैंड से, जिससे आप लिखते हैं उससे अपोजिट वाले से लिखिए। 1 मिनट है आपके पास, लिखिए। थोड़ा इन्वॉल्व होके लिखिए, मजा लेकर थोड़ा लिखिए उसको, मतलब इसको कोई एक काम समझ के नहीं, एक एक्टिविटी ऐसी कि जिसमें आपको क्या फील हो रहा है उसे देखते हुए लिखिए। और अपने सिग्नेचर भी उसी हाथ से कीजिए, अपोजिट वाले से सिग्नेचर कर दीजिए, अपने जो भी आप साइन करते हैं वहां कर दीजिए।
ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने आपसे क्यों करवाया ये। आपके दिमाग के अंदर न्यूरल कनेक्शन जो बनते हैं किसी भी बिहेवियर के, वो कैसे बनते हैं पहले उसे समझाता हूँ, फिर मैं इस बात पर आऊंगा। आपने कभी देखा कोई पार्क है जिसमें हरी घास अच्छे से आ रखी है, बिल्कुल बढ़िया सुंदर पार्क बना रखा है, उसमें से कोई आदमी बीच में से निकल कर जाता है, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा उस पार्क पे? एक आदमी निकल गया एक बार में, नहीं पड़ेगा ज्यादा फर्क। लेकिन अगर उसी रास्ते से डेली 10, 20, 50, 100 आदमी निकलने लग जाए तो उस पे हल्की सी क्या बन जाती है, पगडंडी बन जाती है, रास्ता बन जाता है। और उसी पे अगर डेली 500 निकलने लग जाए तो घास बिल्कुल हट जाती है और बड़ा रास्ता बन जाता है। और किसी दिन हो सकता है कोई बाइक वाला भी वहीं से निकाल ले, और करते करते एक टाइम ऐसा हो जाएगा कि वो 2 हिस्सों में बट जाएगा पार्क पूरा, वो पूरा एक अच्छे से रास्ता बन जाएगा। ऐसे ही हमारे बिहेवियर हमारे दिमाग में बनते हैं। जब मैं कोई काम पहली बार करता हूं तो वो जो कनेक्शन बना उस बिहेवियर का, उस छोटी सी पगडंडी जितना बना, यानी बहुत अच्छा नहीं बना, एफर्ट करने पड़ेंगे मुझे यहाँ चलने के लिए। लेकिन अगर मैं लगातार करता रहूं तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो हाईवे बन जाएगा बिहेवियर, और फिर बिना सोचे मेरे दिमाग की गाड़ी उसी साइड दौड़ेगी। अब इसका सिंपल एग्जांपल समझिए। जो टाइप करते हैं शुरुआत में वो कैसे करते हैं, एक एक अक्षर देखते हैं, ये यहाँ ये यहाँ ये, और एक दिन ऐसा आता है कि वो आपसे बात कर रहे हैं और अपने आप वो टाइप करते रहते हैं, क्योंकि अब वो जो बिहेवियर था वो क्या बन चुका है उनके दिमाग में, हाईवे बन चुका है, उस पर ट्रेवल करना उनके लिए बहुत ईजी है। अब ये तो वो बिहेवियर था जो दिख रहा है, एक्सटर्नल बिहेवियर है। ऐसे हमारी थिंकिंग भी बनती है। जब मैं कोई चीज एक बार सोचता हूं, मान लो मैंने आज एक बार सोचा इस सेशन के बाद, यार अब मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करके दिखाना है, अब मुझे मेंटल हेल्थ को अपने लिए चैलेंज ना मानकर इसको कंट्रोल में लेना है, तो एक बार सोचने से कुछ नहीं होगा। जब आप इसे डेली सोचेंगे और इस पर एक्शन लेंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि ये बिहेवियर आपके दिमाग में हाईवे बना लेगा। इसीलिए आप देखना बहुत सारे लोग जो है जिन्होंने नेगेटिव हाईवे बना लिए हैं अपने दिमाग में, वो बिना अवेयरनेस के सोचे भी उसी बिहेवियर पर चले जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं या गलत बोलने लगते हैं। बाद में फिर जब आप उनसे बात करते हो तो आपको बोलते हैं, अरे यार उस टाइम तो समझ में नहीं आया, बस मुझे पता नहीं मुझसे कैसे हो गया। आज मैंने आपको बता दिया वो कैसे हुआ है, क्योंकि उन्होंने उसे इतनी बार किया है कि अब उनका बस भी नहीं चलता, सीधा गाड़ी उस पर दौड़ने लगती है। और वो गाड़ी दोनों तरह की होगी, बिहेवियर की गाड़ी भी और थिंकिंग की गाड़ी भी। अगर एक इवेंट आपके साथ हुआ और आपने आदत बना रखी है ये सोचने की, अरे मेरी तो किस्मत खराब है, मेरे साथ ऐसे होता है, तो जब भी कोई ऐसा इवेंट होगा आपका दिमाग कहाँ जाएगा, मेरी तो किस्मत खराब है, मेरे साथ ऐसा। लेकिन अगर आपने उसकी तरफ दूसरा सोचा कि अच्छा ये हुआ है, कंट्रोल चेक करता हूँ मेरा कहाँ पे है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उस पर कैसे पूरा एफर्ट डाल सकता हूँ, जो हो गया उसे स्वीकार करूं, जो कर सकता हूं उस पर मेहनत करूं। जब आपने ये थिंकिंग लगाई तो इसका भी हाईवे आपके दिमाग में बन जाएगा, और फिर आपके दिमाग की गाड़ी उसकी तरफ भी दौड़नी शुरू हो जाएगी। और जो ये एक्सरसाइज मैंने आपसे कराई थी, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये जो बता रहा हूँ न्यूरोप्लास्टिसिटी के हिसाब से बहुत अच्छी टेक्निक है, अगर आप चाहते हैं कि आपको लगता है कि यार मैं बहुत जल्दी नई हैबिट एडॉप्ट नहीं कर पाता, मैं नई थिंकिंग को बहुत जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर पाता, मैं नए लोगों से बहुत जल्दी घुल मिल नहीं पाता, मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जा पाता, तो ये जो लेफ्ट हैंड की टेक्निक है, ऐसी 3-4 टेक्निक है। ये इसने भी क्या किया, जब आप इससे लिख रहे थे ना तो ये बिहेवियर आपके दिमाग में सेव नहीं था। सेव तो ये वाला था ना, राइट वाला, उस पर तो लिखने की बात ही नहीं थी। ये बिल्कुल नया बिहेवियर था। जैसे मैं कुछ नया बिहेवियर करता हूं, मेरे दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शंस बनने शुरू होते हैं, और उससे क्या होता है, मेरे दिमाग में एनर्जी पहुंचती है और वो दिमाग फैलता है, नए कनेक्शन बनाता है। जैसा हम सीधी भाषा में बोल देते हैं ना, बंद दिमाग का व्यक्ति है ये, वो सही है। जो नया नहीं करता उसके वो न्यूरल पाथवे, न्यूरल कनेक्शंस कमजोर होते, कम होते चले जाते हैं, और जो नई चीजें करता है उसके वो फैलते चले जाते हैं। और जितना ज्यादा बनेंगे उतना नई हैबिट को, नए एनवायरनमेंट को एडॉप्ट करने की कैपेबिलिटी भी बननी शुरू हो जाएगी। अब ये 2-3 चीजें कर सकते हैं आप। ये तो सिंपल टेक्निक थी, लेफ्ट हैंड से लिखा। मान लीजिए आप कहीं घूमने जाते हैं मॉर्निंग इवनिंग में किसी पार्क में, ज्यादातर क्या होता है हम एक रास्ते से घुसते हैं, एक ही तरीके से घूमते और वापस आ जाते हैं। अब की बार जाओ तो दूसरे रास्ते से एंटर करना और दूसरी तरीके से उसको राउंड लेना अपना। अगर आप ऐसे जाते थे तो अब की आज उस पे ऐसे जाना। इससे क्या होगा, नए न्यूरल कनेक्शंस बनेंगे, और ये न्यूरल कनेक्शन आपकी हेल्प करेंगे फ्यूचर में नई हैबिट को जल्दी से आत्मसात करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए, नए लोगों के साथ जल्दी से घुलने मिलने के लिए, नए एनवायरनमेंट में बहुत जल्दी से एडजस्ट होने के लिए। क्योंकि हमारी दिक्कत क्या होती है, मेंटल हेल्थ के लिए न्यू बिहेवियर, न्यू एनवायरनमेंट,
नई चीजें संजीवनी बूटी जैसी होती है। आप कभी भी देखिए, जिस आदमी को बहुत ज्यादा परेशानी होती है उसे क्या बोलते हैं, थोड़ा घूम आओ, माहौल चेंज करो, वो सही बोला जाता है उसे। जैसे हम नई जगह पर जाते हैं, नई कनेक्शन बनते हैं, नई विचारधारा आती है, नई बात। जो समझदार लोग हैं वो अपने साल को कुछ इस तरह डिवाइड करके रखते हैं कि 10-15 दिन तो कुछ नया करके आएंगे, कहीं नई जगह पर जाकर आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि नए कनेक्शन बनेंगे और वो उन्हें पूरा साल हेल्प करेंगे क्या करने में, नई हैबिट डालने में, नए लोगों से मिलने में, नए आइडियाज सोचने में। तो आप इसको कई तरीकों से कर सकते हैं। जिस टाइप के आप YouTube पे वीडियोस देखते हैं या सीरियल देखते हैं या मूवीज देखते हैं, बिल्कुल अलग जॉनर की मूवी देखिए कोई, वो भी नया कनेक्शन बनाएगी। आप जिस टाइप के विचार पूरा दिन सोचते हैं, किताबें पढ़ते हैं, बिल्कुल अलग कुछ पढ़िए। मान लो अगर आप कभी भी, मैं हिंदी का स्टूडेंट हूं, मैं कभी साइंस की किताब नहीं पढ़ता, तो मुझे वो पढ़ लेनी चाहिए कि चलो आज ये पढ़ के देखते हैं, नए कनेक्शन बनेंगे और ये आपकी हेल्प करेंगे किसमें, नए एनवायरनमेंट में जाने में। और मेंटल हेल्थ का सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, आदमी डे बाय डे एक दायरे में बंध जाता है, बस उससे निकलता नहीं वो कभी भी। वो डेली एक रूटीन काम करता है, घर से निकला, ऑफिस गया, वापस आया, सेम वही रूटीन काम हो रहे हैं। अगर आप देखो तो इसी बात को ओशो ने बड़े अच्छे तरीके से बोला है। अभी नया साल आने वाला है, उन्होंने बोला कि क्या करोगे नए साल का, कितने साल तुमने पुराने कर दिए, ये भी पुराना कर दोगे। साल नया होने से कुछ नहीं, हाल भी तो नए हो, हमारी हालत भी तो नई बने, हमारे विचार भी तो नए बने, हमारे जीवन में कुछ तो नया आए। और वो ऐसे नहीं करना कि रेजुलेशन बना दिए, स्टेटस बना दिए, किया कुछ भी नहीं, चाहे 2 चीज अपनाओ लेकिन नहीं अपनाओ। मंथ में एक दिन हर किरदार को छोड़ दो। अगर ना तो आप स्टूडेंट हो, टीचर्स भी सुन रहे हैं, तो वो ना टीचर बने, एक दिन हर किरदार को छोड़ दो, वो अपना दिन रखो। भले उस दिन आपका मन करता है कि आप आज तो सुबह से शाम तक पार्क में धूप में बैठूंगा, कुछ नहीं करूंगा, करो उसे, बड़ा आपके मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है। लेकिन हम इतना बंध जाते हैं ना एक रूटीन वर्क में, हमें लगता है मैं नहीं कुछ काम करूंगा तो दुनिया रुक जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं नहीं था तब भी दुनिया थी, मैं नहीं रहूंगा तब भी दुनिया रहेगी। मेरे आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। ये जो जग है, ये दुनिया है, ये जंक्शन है एक रेल का। यहाँ पर एक गाड़ी डेली उतरती है, एक ऊपर चली जाती है, आना जाना लगा रहता है। मुझे उसके बीच में अपने आप को एक दिन मंथ में देना है। उस एक दिन में आपका कोई कैरेक्टर, कोई किरदार, कुछ नहीं होगा, सारे उतार के सामान इधर से रख दो। आप देखो ना, मान लो हम ट्रेन में बैठे और मुझे भी कहीं जाना था और आपको भी जाना था, ट्रेन चल रही है और मैं भागता रहूं इंजन की तरफ कि मैं जल्दी पहुंचूंगा, तो क्या मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा? नहीं ना, ट्रेन अपनी स्पीड से चल रही है। मेरे भागने से, वो इंजन की तरफ भागने से सबसे आगे वाले डिब्बे में बैठता हूं तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, और ड्राइवर के बराबर में बैठ के देखता हूं कितनी स्पीड से चला रहा हूं तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। नहीं, वैसी लाइफ है। आपके 29 दिन खूब मेहनत से काम करने के बाद अगर आप एक दिन अपने लिए नहीं निकाल पाते, तो सोचने की बात है ना ये कि एक दिन मेरे लिए अपने पास अपने लिए नहीं है, बाकी को मैं क्या दूंगा, मैं किसी को क्या दे सकता हूं जो मेरे पास है। मेरे पास मान लीजिए अभी ये मेरे पास इसमें कुछ है, क्या दे सकता हूं आपको जो इसके अंदर है, इस बोतल के अंदर है? पानी है तो पानी दे सकता हूं, चाय है तो चाय दे सकता हूं। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि इसके अंदर पानी था और मैं डालने लगा तो आपके पास चाय पहुंच गई। क्या ये पॉसिबल है? वही आपका है। आप किसी को प्यार कब दे सकते हैं? जब आपके अंदर है। आप बोलते हैं मुझे लोगों ने गुस्सा दिलवाया, नहीं, उन्होंने ट्रिगर किया, गुस्सा तो पहले से अंदर था। अगर वो अंदर होगा ही नहीं, बुद्ध को देखो ना, उनके तो गुस्सा आता ही नहीं था क्योंकि अंदर नहीं था। तो जो आपके अंदर है वही बाहर जाएगा। अंदर बहुत अच्छा रखना है। और अंदर कैसे जाता है? सेंसेस के जरिए। डेटा जो जाता है वही तो मेरा दिमाग है। अगर मैं आपके दिमाग से डेटा निकाल दूं सारा, तो आपको तो ये भी नहीं पता आपका जेंडर क्या है, नाम क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। ये सारा डेटा तो गया है ना हमारे दिमाग में। उसको अच्छा करो। कैसे करते हैं? अच्छे लोगों की संगति करो, अच्छी किताबें पढ़ो। जीवन में अब हमेशा लोगों को देखना डी और डी के जरिए, डिलीट डिस्टोर्शन से पहचान जाओगे आप कि आदमी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। जैसे कोई इवेंट हुआ नहीं, दोनों डिस्टोर्शन करेंगे, पॉजिटिव वाला अपने लिए करेगा और नेगेटिव वाला ब्लेम फ्रेम में जाएगा, मेरे साथ ही क्यों हुआ, उसने किया। आपको वो नहीं करना। आपको क्या करना है? पॉजिटिव वाला करना है। ठीक है जी। अब एक छोटी सी टेक्निक कर लेते हैं। आपके दिमाग को थोड़ा सा विजन दिखाता हूं मैं कि कैसे इमेजिनेशन और रियलिटी दोनों दिमाग के लिए एक है। पहले मैं बता दूं कि एक है ताकि आपको लगे। एक बार के लिए मेरे साथ इमेजिन करोगे ना, बिल्कुल सेफ जगह पर आप बैठे हो। मैं उम्मीद करता हूं अगर आप कहीं भी ट्रैवलिंग कर रहे हो तो ये एक्टिविटी मत करना, आप अपने घर पे बैठे हो आराम से सेफ्टी में तो ही करना।
आंखें बंद कीजिए एक बार के लिए, रिलैक्स माइंड से बिल्कुल। इमेजिन कीजिए अपने आप को, इमेजिन कीजिए आप अपने घर के दरवाजे पर खड़े हैं। अपने घर के दरवाजे का कलर देखिए, उसे टच कीजिए, उसके टच को महसूस कीजिए अपने हाथ पर अभी इमेजिनेशन में। उसे खोलिए दरवाजे को, उसकी आवाज सुनिए कैसे खुलता है वो। अब धीरे 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 अपने घर के अंदर एंटर कीजिए। अब अपने घर की किचन की तरफ, रसोई की तरफ जाइए। देखिए कैसा दिखता है आपके घर का किचन, उसमें एंटर कीजिए। वहां एक लेमन रखा है, नींबू रखा है, उसे उठाइए अपने एक हाथ से। उसका कलर और उसका टच महसूस कीजिए अपने हाथ पर, कलर देखिए उसका पूरी इमेजिनेशन में। आपको सच में लगना चाहिए आपके हाथ में भी लेमन है, इतना डीपली आपको उसे फील करना है। दूसरे हाथ से एक चाकू उठाइए और अब धीरे धीरे इस लेमन को कट कर दीजिए बीच में से 2 पीसेस में। देखिए अब चाकू रख दीजिए, आपके दोनों हाथों में एक एक पीस लेमन है। देखिए कैसा दिखता है कटने के बाद, फील कीजिए पूरी तरह इसको। अब धीरे से लेमन के एक टुकड़े को अपने मुंह में निचोड़ लीजिए और अब आंखें खोल के बताइए क्या हुआ। जिन्होंने फील किया उन्हें लगा कुछ, लगा क्या Yes, लेमन, sir. Yes, क्या sir. लेमन I felt like that I literally squeezed the lemon in my mouth. क्या सच में लेमन था? नहीं। वो सर क्या सच में नहीं था। क्या सच में हम अपने घर की रसोई में थे? नहीं। लेकिन देखिए मैं आपको हर चीज प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, कोई भी किताबी बात नहीं, हर चीज डेमोन्स्ट्रेशन से बता रहा हूँ कि आपके दिमाग के लिए इमेजिनेशन और रियलिटी में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे आपने डीपली सोचा उसने उसे सच मान लिया और वैसे बिहेवियर आपको दे दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जो सोचता हूं मेरा सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानता है। तो क्यों ना मैं अच्छा सोचूं, बढ़िया सोचूं। तो अब एक छोटी सी विजुअल एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है जी। आंखें बंद कीजिए एक बार के दोबारा। और अगेन कोई अगर ट्रेवलिंग कर रहा है तो प्लीज मत करना, घर पे आराम से सेफ बैठे तभी करना जी। आंखें बंद कीजिए। इमेजिन कीजिए अपने आप को 2022 के दिसंबर में, ठीक 1 साल बाद। अपने आप को इमेजिन कीजिए आप अपनी फेवरेट जगह पर बैठे हैं, जहां भी आपको जाना अच्छा लगता है। इमेजिनेशन में आप वहां पहुंच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल रिलैक्स जगह पर बैठे हैं, अच्छी सी हवा चल रही है, बढ़िया। आपने अपनी पसंद के कपड़े पहने हैं, देखिए अपने आप को। आपने अपनी पसंद का हेयर स्टाइल बनाया है, वो भी देखिए। स्माइल करते रहिए साथ के साथ, और इमेजिनेशन में भी अपने आप को हंसते हुए देखिए। और जहां बैठे हैं वहां बैठकर सोचिए कि अरे वाह, मैंने इस साल के अपने सारे एम अचीव कर लिए। अगले 10 सेकंड के लिए अपने आप से इमेजिनेशन में बात कीजिए, तारीफ कीजिए अपनी कि देखो तुमने जो जो सोचा था 1 साल पहले सब अचीव कर लिया। अब इमेजिन कीजिए कि वहां पर 2-3 लोग और आ गए आपसे मिलने के लिए, आपके जानकार हो सकते हैं, और वो आपसे पूछ रहे हैं कि अरे यार तुमने अपनी लाइफ को इस 1 साल में इतना कैसे बदल दिया, इतने पॉजिटिव कैसे हो गए, इतना तुम्हारा फेस भी बिल्कुल अलग हो गया है, अलग से तुम्हारे फेस पर चमक दिखती है। अब उन्हें बताओ आपने क्या किया, बताओ आपने आपने अपनी सोच को कैसे बदला। 20 सेकंड आपके पास है, उनसे इमेजिनेशन में बात करो। साथ में स्माइल करते रहो। अब अपने आप को इमेजिन कीजिए कि आप उन्हें बताकर वहां से निकले और बिल्कुल कहीं अलग अकेली जगह में आकर बैठ गए। और अब बिल्कुल अपने सामने अपने आप को देखिए, आप जहां बैठे हैं उसके बिल्कुल सामने अपने आप को देखिए। अपना सेकंड रूप आपका है अदर यू, उसे देखिए।
वो आपकी तरफ मुस्कुरा रहा है, आप उसकी तरफ मुस्कुरा रहे हैं। आप खड़े होके उसे हैंडशेक कीजिए, अपने आप को ही मतलब, और उसे बोलिए कि तुम मेरा सबकॉन्शियस माइंड हो, तुमने इस साल मेरा बड़ा साथ दिया, मुझे हर अच्छी चीजें दिखाई, जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत पड़े हमेशा मेरे साथ रहना। ये स्टेटमेंट उसे दो और फिर उसे हग करो, यानी अपने आप को। स्माइल करते रहिए। अब तीसरा और लास्ट सीन हम देखेंगे। अब आप बिल्कुल अपने घर में, अपने कमरे में जहां अभी है वहां बैठे हो, और एक बार के लिए देखिए कि मैंने इस साल में कौन कौन से स्टेप लिए। हम फ्यूचर में हैं 2022 के दिसंबर में, तो जनवरी से दिसंबर तक एक बार जल्दी से 20 सेकंड में देखिए आपने क्या क्या अच्छी आदतें, 3 अच्छी आदतें देखिए कोई भी, जो आपने अपनी इस साल में डाल ली, अपने अंदर अपने बिहेवियर में लेकर आ गए। उन 3 हैबिट को देखिए बैठ के, अपने आप को उन काम को करते हुए। मैं 20 सेकंड बिल्कुल नहीं बोलूंगा, बिल्कुल डीप इमेजिनेशन करनी है। अब अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि आप इन हैबिट को हमेशा कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि इन्होंने आपकी लाइफ चेंज कर दी। अब एक स्माइल कीजिए बड़ी सी, और सभी उन लोगों का थैंक यू बोलिए जिन्होंने आज तक आपका साथ दिया है। कोई भी 2-3 लोग अपने दिमाग में लेकर आइए और स्माइल के साथ, बिल्कुल फीलिंग के साथ उन्हें दिल से थैंक यू बोलिए। धीरे 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 प्रेजेंट अवेयरनेस में आ जाइए, जहां आप अभी बैठे हैं। अपने मोबाइल नंबर को याद कीजिए, अपना सरनेम और अपना नाम याद कीजिए। अभी आंखें नहीं खोलनी, अपने दोनों हाथ रब कीजिए, बहुत अच्छे से रब कीजिए, रब बहुत अच्छे से, तब तक कि आपको हीट ना लगने लगे। अच्छे से रब कीजिए और इमेजिन कीजिए जब आप इसे रब कर रहे हैं तो सारी पॉजिटिविटी किसी कलर के रूप में, जो भी आपका फेवरेट कलर है उसे इमेजिन कीजिए आपके हाथ पर आ गया पूरा। अब इसे अपने आंखों पर, चेहरे पर रख लीजिए दोनों हाथ को, और इमेजिन कीजिए वो पूरा कलर पॉजिटिविटी का जो आपके दिमाग, आपकी पूरी सेशन से आया है, इमेजिनेशन से आया है, वो आपके पूरे शरीर में फैलता जा रहा है। पॉजिटिविटी का कलर आपके हाथों के जरिए। अपनी आंखों पर अपने हाथ रखिए, चेहरे पर अपना हाथ रखिए और स्माइल करते हुए धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए स्माइल के साथ। अब बताइए कैसा लगा, बताइए। अच्छा लगा सर। रिलैक्सिंग। चलिए अब एक लास्ट एक्सरसाइज आपको करा देता हूं, उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगा, ठीक है जी। एक बार के लिए आपको ऐसा करना है, सीधा करना है आपको। मैं आपको बस दिखा रहा हूं गैप, इतनी दूरी पे आपका हाथ बिल्कुल सीधा ऐसे रखिए, ऐसे बिल्कुल सीधा, इतनी दूरी होनी चाहिए। मैं दिखाने के लिए साइड में हूं, आपको सामने रखना है, सीधा बिल्कुल सामने रखिए। अब आप इस हाथ के बीच में से, फिंगर के बीच में जो गैप है, सामने जो भी है, स्क्रीन हो सकती है, कोई दीवार हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसे देखिए। फिंगर्स के बीच में से पूरा फोकस किस पे करना है, जो सामने आपके कुछ है। और नोटिस कीजिए जब आप सामने देख रहे हैं अपनी फिंगर्स के बीच में से, तो आपकी फिंगर्स आपको ब्लर दिख रही है, यस या नो? यस, आपकी फिंगर ब्लर है। अब इसी पोजीशन में रहिए। अब अपना पूरा फोकस अपनी फिंगर पे कर दीजिए, किसी भी एक फिंगर पर पूरा फोकस कर दीजिए, पूरा फोकस। और अब देखिए सामने जो भी है वो ब्लर हो गया, ऐसा हुआ? रिलैक्स, नीचे कर लीजिए। यही जीवन है। अगर तो मैं देखूंगा समस्या है, समस्या है, तो जो सोल्यूशन है फ्यूचर में, जो समाधान है, वो ब्लर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं देखूंगा समाधान भी है, तो जो इसकी नेगेटिविटी है ये ब्लर हो जाएगी। दैट इज लाइफ। आपका फोकस कहाँ है, वहीं से जीवन आपको चीजें दिखाना शुरू कर देता है। अब तक के सेशन में जो भी आपका सवाल आया है, अब आप अपने सवाल पूछ सकते हैं।
और मुझे अच्छा लगेगा आप सवाल पूछेंगे, तो मुझे लगेगा आपने सुना है ध्यान से। Sir, I have a question. जी छाया, हाँ जी बताइए। Sir, yeah, actually, I never shared these things and hide in myself. I myself have graduated and done masters in psychology, but faced a little problem during the time of a crisis like Corona. May I lost my mother, and I was really much attached to her. मैं अभी भी बात करते टाइम इतना वो फील करती हूँ कि आई स्टार्टेड क्राइंग। मैं हार्डली किसी के साथ ये बात शेयर करती हूँ और डर भी लगता है कि अब कोई है नहीं। आई लॉस्ट माई फादर व्हेन आई वाज इन 12th and I also lost my mother now. So I was really facing some issues. Taken therapies as well. My colleagues used to give me because they are doing something in therapy sessions. So these things help me. I also believe in power of manifestation, and I also believe in attraction of law. सर ये सब करने के बाद भी I faced a hard time that. तो मुझे बस हमेशा ये लगता रहा, ये बात मेरे को अभी भी रियलाइज हुई कि मेरे साथ ये इसलिए नहीं हुआ कि सिर्फ मेरे साथ ही हुआ। मेरे साथ बहुत से ऐसे लोग थे जो उस टाइम स्ट्रगल कर रहे थे। आई यूज्ड टू गो हॉस्पिटल ऑल अलोन एंड डू एवरीथिंग एंड lit the fire of my mom. But all these things doesn't makes me any good of a person. ये मुझे थोड़ा अभी भी लगता है। Can you just share कि मैं क्या कर सकती हूँ इसके लिए? देखिए शायद सबसे पहले तो सो सॉरी टू हियर दिस कि बहुत बड़ा नुकसान होता है किसी के भी जीवन में, क्योंकि माँ क्या है ये बस वही जानता है जिसके माँ के साथ कुछ ऐसा हुआ है। लेकिन मैं फिर भी आपको मतलब बहुत ही हम्बली एक बात कहना चाहूंगा, मैं आपको जज नहीं कर रहा बिल्कुल। ऐसे इवेंट से निकलना इतना आसान नहीं होता जितना कि बोलना होता है उसके बारे में। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं अगर थोड़ी अवेयरनेस के साथ सोचूं कि कुछ चीजें ऐसी है जीवन की छाया जो मेरे नियंत्रण में है ही नहीं। मेरा अपना जीवन भी मेरे नियंत्रण में नहीं है। मैं ये भी नहीं बता सकता मैं कब तक हूँ, आप भी नहीं बता सकते आप कब तक है। तो सबसे पहले तो मुझे ये स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकृति बहुत बड़ी चीज है कि अब जो हुआ है वो मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन अब मैं उसके साथ क्या करता हूँ ये मैं अपने हद में रह के कर सकता हूँ। यानी आपके मदर के कुछ सपने रहे होंगे छाया को लेकर, उनकी कुछ विश रही होंगी कि छाया ऐसी बने जीवन में, ये करे या वो करे, कुछ आपको लेकर उनके भी सपने रहते हैं, हर माँ बाप के रहते हैं। तो अब उन सपनों को जीना शुरू कर दो, अब उन्हें अपना मोटिवेशन बना लो कि देखो पहली बात तो अगर मैं थोड़ा इसको स्पिरिचुअल टच भी दूं आपकी बात को, एग्जिस्टेंस सिर्फ फिजिकल खत्म होती है, एनर्जी के तौर पर नहीं। क्वांटम फिजिक्स भी ये मानता है कि एनर्जी तो है, सब जगह पे है, चेंज हो रही है, किसी एक रूप से दूसरे रूप में जा रहे हैं हम। तो फिजिकल एग्जिस्टेंस के तौर पे भले ही वो आपके साथ नहीं है, लेकिन एनर्जी के तौर पे या उसे ब्लेसिंग के तौर पे वो हमेशा आपके साथ है। तो अगर वो आपके साथ है तो वो क्या चाहेंगी कि आप कैसा जीवन जिए? वो यही चाहेंगे कि मेरी बेटी हमेशा खुश रहे और अपनी लाइफ में वो सब अचीव करे जो मैं चाहती थी कि वो कर सकती है। अब इस चीज को अपने जीवन का आधार बना लो, इसी को अपनी स्टेटमेंट बना लो, मिशन स्टेटमेंट बना लो, इसी को अपना मोटिवेशन बना लो। क्योंकि देखो चाहे इस टाइम इस चीज से निकलने में समय लगेगा, अपने आप को समय दो। सबसे बड़ी बात ये कोई चुटकी बजा के करने वाली चीजें नहीं होती, समय लगता है, अपने आप को समय दो पूरा। क्योंकि ये कितना बड़ा नुकसान है कि इसके बारे में बात ही नहीं की जा सकती, मतलब कोई शब्द नहीं बयान कर सकता कि पेन की कितनी ज्यादा आपके अंदर इस टाइम कितना इंटेंस ये पेन आपके अंदर है। लेकिन क्या हो सकता है कि मैं स्वीकार करके अपने आप को टाइम दूं और उसके बाद अपनी मदर की उन सारी विशेष को अपनी स्ट्रेंथ बना लूं, उसी को अपना मिशन स्टेटमेंट बना लूं और ये समझ के चले कि वो जहां भी है, फिजिकली मुझे नहीं दिख रहा लेकिन उनको मैं जरूर दिख रहा हूं, क्योंकि मेरी फिजिकल एग्जिस्टेंस है उनकी नहीं है, तो वो मुझे कैसे रूप में देखना चाहेंगी, इस तरफ अपना ध्यान लगाएंगे तो बहुत आपको हेल्प मिलेगी। हाँ आपने बिल्कुल सही बोला कि ऐसी चीजें एकदम नहीं होगी, समय लगेगा, समय आपको अपने आप को देना ही पड़ेगा। और बाकी मेरी तरफ से जो भी मैं बता सकता हूँ कर सकता हूँ कभी भी फ्यूचर में, मैं हमेशा आपको जरूर बताऊंगा। थैंक यू सो मच सर, आई नीडेड दैट। थैंक यू। थैंक यू सर। जी और कोई सवाल पूछिए, आप क्या पूछना सर? जी सर जैसे कई बार हमें मतलब टेंशन होती है कुछ होते है, लेकिन मैं सर हमको खुद को नहीं पता होता, तो सर इस चीज को मतलब जैसे सर कई बार नेगेटिविटी भी आती है लेके कि मतलब मैं ऐसे जैसे गाड़ी में जा रहा हूँ, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, या मैं बाइक पे जाऊँ बाइक का टायर पंचर हो गया, या जैसे घर का मैं मतलब लॉक लगा के आया नहीं कहीं बाहर जाते हैं, तो सर ये सारी चीजें आती हैं नेगेटिविटी। तो सर मतलब इसको मतलब हम कैसे पहचाने कि
कि हमें टेंशन है और या हम डिप्रेशन में की ओर जा रहे हैं। क्योंकि सर मैंने खुद को भी ऑब्जर्व किया, कई और अपने मतलब दोस्तों को और बड़े जनों को ऑब्जर्व किया है कि वो जैसे कि मतलब उनको खुद नहीं पता होता कि हम टेंशन में है, लेकिन वो जैसे कि वो बताते हैं। सर मैंने मतलब किसी ने मुझे बताया था कि जैसे कि हम भूल जाते हैं कि हम लॉक करके आए हैं, या नेगेटिविटी आती है कि एक्सीडेंट हो जाएगा, कि ये एक डिप्रेशन का मतलब ऐसा लगता है कि ये डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो सर मतलब उनको कैसे बताएं कि तुम मतलब इस चीज को मतलब दिखाओ या फिर मेंटल केयर करो अपनी। देखो सबसे बड़ी बात तो ये है विष्णु, सवाल बड़ा रियलिस्टिक आपका, कि लोगों को हम बता भी नहीं सकते, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। मैं भी नहीं बता सकता, आप भी नहीं बता सकते। मैं किसी को बोल दूंगा कि यार देखो मुझे तुम्हारे बिहेवियर से लग रहा है कि तुम्हें मेंटल हेल्थ का प्रोफेशनल ढूंढने की जरूरत है, तो सामने वाला मुझसे बात करना बंद कर देगा, करेगा ना। तो अब यस हमें क्या सर। करना है, हमें ये तो बोलना ही नहीं है कि तुम्हें जरूरत है, लेकिन अगर मुझे पता लग जाए कि उसे जरूरत है, तो मैं अपनी तरफ से जितनी हेल्प कर सकता हूँ, क्या हेल्प कर सकता है एक आदमी दूसरे की, उसे पॉजिटिव कंटेंट दे सकता है बस, जो कि मैंने आपको दिया। इससे ज्यादा तो मैं नहीं कर सकता, मैं आपके बिहाफ पे सोच नहीं सकता, मैं ये बता सकता हूँ आपको कैसे सोचना है। तो वैसे ही आप किसी दूसरे के बिहाफ पर कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके अंदर वो अवेयरनेस पैदा करने के लिए आप कुछ रेफरेंस, कुछ एविडेंस उन्हें दिखा सकते हैं बस। और वो भी तब जब रिलेशनशिप इतना है, क्लोज है, कि अगर सामने वाले को बुरा भी लग गया तो कोई बात नहीं, डील कर लेंगे। आम पब्लिक में तो आप कभी नहीं बता सकते चीजें। मतलब आम पब्लिक छोड़ दो, प्रोफेशनली भी मान लो मेरे कोलीग्स को मुझे देखकर लग जाए यार इसे जरूरत है, मैं उसे भी नहीं बता पाऊंगा। सेमिनार वेबिनार में बोलना एक अलग बात है, पर्सनली किसी को बोलना कि देखो तुम्हें चैलेंज आ गया और तुम्हें इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट कराना चाहिए, एक बहुत बड़ी बात है इंडियन सोसाइटी में। टाइम लगेगा इसको आने में भी। तो अभी तो हम क्या कर सकते हैं, उन्हें कोशिश करें कि हम कुछ अच्छे कंटेंट दे, भले गिफ्ट के तौर पे दे दे, कोई अच्छी किताब दे दे, हमें लगता है कि यार इस किताब को पढ़ने से कुछ हेल्प हो सकती है, कोई वीडियो उनके साथ शेयर कर दे कि देखो इसको देखने से हेल्प हो सकती है। अपना जितना कर्म है उतना करो। सर आपका ये लेक्चर सुनकर मुझे सर एक 10वीं कक्षा की अपनी कविता याद आ गई जो गिरिजा कुमार माथुर ने लिखी है सर, छाया मत छूना। हम्म। सर मतलब वो बहुत ही याद आ गई। देखो जीवन ऐसा ही है विष्णु, कि हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी रहती है जिनको हमें इग्नोर करना पड़ता है, बहुत सारी ऐसी रहती है जिनको स्वीकार करना पड़ता है। तो दोनों के अंदर जो बैलेंस बना गया वो सही है। जैसे आप अगर आप देखो कि आप अगर अपनी छाया से लड़ोगे तो आप कभी जीत नहीं पाओगे। आप उसे एक यस तरह से जीत सकते हो कि आप प्रकाश की तरफ मुंह कर लो, लाइट की तरफ मुंह कर लो, वो अपने आप पीछे चली जाएगी। तो वही जीवन है, अज्ञानता से लड़कर कभी नहीं जीता जा सकता, ज्ञान लेकर उसे हराया जा सकता है। वैसे ही नेगेटिविटी से लड़कर उसे कभी नहीं जीत पाओगे, पॉजिटिविटी कंटेंट की मात्रा इंक्रीज कर दो, अपने आप ही पीछे चली जाएगी। और कोई सवाल सर, किसी? जैसे हम कॉन्फिडेंस होते हैं सर, कभी कभार हमारे कॉन्फिडेंस के बीच नेगेटिविटी भी आना सर सही है या ये गलत है कई हद तक? वो चीज है, अभी बड़ा ही एक वर्ड फेमस हुआ है पिछले कुछ 20-25 साल में, पॉजिटिव थिंकिंग। देखो पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा काम नहीं करती। क्यों नहीं करती, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। कि मान लो मैं रेलवे ट्रैक पे खड़ा हूँ, सामने से रेल आ रही है, आप सब दूर खड़े हो, सामने से ट्रेन आ रही है, और मैं आंख बंद करके शाहरुख खान बन जाऊं कि मैं बड़ा पॉजिटिव इंसान हूं, मुझे कुछ नहीं होगा, तो क्या होगा मेरे साथ? वो मुझे 1 मिनट में उड़ा देगी। या कोई सांप आ गया निकल के कमरे में, और मैं बोलूंगी नहीं मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ, मुझे कुछ डरने की जरूरत नहीं है, तो भी मेरे साथ गलत होगा। तो पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब है रियल पॉजिटिव, रियलिस्टिक होकर पॉजिटिव थिंकिंग करनी है। अगर नेगेटिविटी आ रही है तो एक तरह से एवरी बिहेवियर हैज पॉजिटिव इंटेंशन फॉर यू। वो जो नेगेटिविटी है वो भी आपको कोई मैसेज देना चाहती है। या तो आपने तैयारी अच्छे से नहीं की, या अभी भी कुछ चीजें हैं जिस पर आपका ध्यान नहीं गया, वो मैसेज जनरेट कर रही है। वो जो आपका फियर है, आपका डर है, वो एक्चुअली में आपको एक मैसेज देना चाह रहा है। अगर तो आप उस मैसेज को पकड़ गए तो फिर तो वो नेगेटिविटी भी आपके काम आ सकती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, कल को इंटरनेशनल मैच है मेरा क्रिकेट का, और मैं आराम से रिलैक्स लेटा हूँ, कोई प्रैक्टिस नहीं, कुछ नहीं, तो ये तो अब सोचने की बात है ना, ये तो बिहेवियर सही नहीं है। हाँ, अब अगर मैं तैयारी करने के लिए, वो नेगेटिविटी मुझसे तैयारी करवा रही है कि यार मुझे कोई पहली बॉल पे आउट ना कर दे, तो अब वो मेरे फायदे में काम करना चाह रही है। सेम वैसे एग्जाम से पहले जो आपको टेंशन आती है वो खराब नहीं है, वो नहीं आएगी तो आप पढ़ोगे भी नहीं, सीधी सी बात है। तो वो आपके फेवर में आई है, आपको आपका सबकॉन्शियस माइंड मैसेज दे रहा है कि भाई कुछ कर, उठ के करने की जरूरत है। लेकिन आप जब एक्शन देखो, थिंकिंग विदाउट एक्शन ये स्ट्रेस होता है। अगर थिंकिंग के साथ एक्शन भी ले लोगे तो स्ट्रेस नहीं है। आप कभी भी देखना, आपको मान लो असाइनमेंट बनाने थे, आपको तब तक टेंशन है जब तक वो नहीं बना, बनाने के बाद क्या टेंशन है? टेंशन कब होती है? अभी मैम ने दिया 1 महीने का टाइम है, अरे बन बन जाएगा बन जाएगा। 15 दिन का टाइम है, अभी तो बन जाएगा। 10 दिन, 5 दिन, 3 दिन, 2 दिन, अब रात को बैठे हैं, कल देना है।
यस तो हमें देखना पड़ेगा कि वो टेंशन एक्चुअली में हमें कुछ करवाने के लिए आ रही है। जी आयुषी, आपने बिल्कुल सही बोला कि आपको कुछ भी इग्नोर नहीं करना, पहले स्वीकार करना है, जो हमने जहां से शुरुआत की थी कि पहले स्वीकार कीजिए कि देयर इज चैलेंज, वहां पे है चैलेंज। अब देखना है हाउ टू डील इट, व्हाट कैन आई डू। जब मैं स्वीकार ही नहीं करूंगा कोई चैलेंज है तो फिर तो वो पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, वो गलत हो गया आपके लिए। यस सर, मतलब कोई दुख आया है तो दुख है, वो दुख तो है ही है हमारे पास, पर उसके साथ अब डील के, हाँ, पर उसके साथ अब डील कैसे करना है वो हमें उसे पॉजिटिव वे में देखना है, वो देखना है, इग्नोर नहीं करना है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और सवाल आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग क्यों आती है? ओवर थिंकिंग का सीधा सा समाधान बताता हूं। हम बहुत सारे काम पेंडिंग कर लेते हैं अपने दिमाग में, बहुत सारे काम हमें पता भी नहीं है। मैंने आज सोचा मुझे ये करना है, कल सोचा वो करना, तो इतना ज्यादा पेंडिंग हो गया काम मेरे दिमाग में सारा कि अब मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद मुझे कई चीजें बता रहा है करने के लिए, लेकिन एक्शन तो हो ही नहीं रहा। तो मैं उसको क्या बोल रहा हूँ? ओवर थिंकिंग। एक्चुअली मैं उसका सीधा सिंपल सा समाधान बता देता हूँ। बहुत टेक्निक है, सिंपल टेक्निक है। जो भी दिमाग में आ रहा है उसे लिखना शुरू कर दीजिए, एज इट इज लिखना शुरू कर दीजिए। इंसान इस प्लेनेट पर सबसे आलसी प्राणी है, तभी हमने सारे इन्वेंशन किए हैं अपनी सुविधा के लिए। तो जैसे आप लिखना शुरू करते हो आपका दिमाग क्या होता है? थक जाता है, वो ओवर थिंकिंग को वहीं पे रोक देता है। और लिखना एक स्टेप है, फिर उनमें से ढूंढना भी है कि मैं कौन से ऐसे काम थे जो मुझे करने चाहिए थे पर मैंने नहीं किए। जैसे आप उन्हें वन बाय वन देखो। पहली बात तो एक कहावत है, एक हाथी को कैसे खाया जा सकता है? एक बाइट एक टाइम पर। बस वही आपके जीवन के बारे में है। हम 10 काम एक साथ लेके चलते हैं, इसलिए हमें ओवर थिंकिंग और सारी चीजें आती है। अगर मैं ये सोच लूं कि भी सारी चीजें तो मैं एक साथ नहीं कर सकता, ये तो सच्चाई है, मेरी एक लिमिट है, मैं वन बाय वन करता हुआ चलूं तो वो सारी चीजें अपने आप डील हो जाएंगी। और सवाल आए मैं देखता रहता हूँ। जी बिल्कुल। ओवर रिएक्शन, अब गौरव ये सवाल मतलब पता नहीं आप किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हो। ओवर रिएक्शन जैसे कुछ चीज नहीं होती एक्चुअली में। हम जो रिएक्ट कर रहे हैं ना, एक्चुअली में इमेजिनेशन में आदमी पहले रिएक्ट करता है, रियलिटी में बाद में करता है। मैं आपको सिंपल सा इसका एग्जांपल देता हूँ कि मान लो मुझे गुस्सा आ गया आपके ऊपर। अब मैं उसके पीछे कुछ भी रीजन दूं, पर वो गुस्सा पता क्यों आता है? क्योंकि मैं उस सिचुएशन में जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आया है आपके ऊपर, मैं उस सिचुएशन में आपसे कुछ और एक्सपेक्टेशन लेकर बैठा था बिहेवियर की। इट मींस मैं पहले से अपने दिमाग में आपको लेकर एक बिहेवियर देख चुका था, मैनिफेस्टेशन में कुछ और हुआ। यानी गैप किस में आ गया? एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में। मेरी एक्सपेक्टेशन थी 10, रियलिटी मिली 2। अब मुझे गुस्सा आएगा। जितना इसमें गैप होगा ना, उतना दुख दर्द गुस्सा है। इसको बैलेंस बना के चलना है कि मान लो मैंने सोचा था कि आज का सेमिनार बहुत अच्छा होगा, कोई गलत नहीं है सोचना, लेकिन मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि रियलिटी अलग हो सकती है। एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में बहुत गैप होगा तो मुझे गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा, मैं ओवर रिएक्ट कर दूंगा। लेकिन अगर मैं ये सोच के चलूं कि मेरे कंट्रोल में तो बस ये प्रेजेंटेशन देनी थी, बाकी कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ वो तो वो बता सकते हैं जिन्होंने सुना है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में दोनों में गैप अपना बैलेंस बना के चल रहा हूँ। और गुस्सा, दुख, डिप्रेशन, उनमें बहुत ज्यादा रीजन एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के गैप के हैं। देखो आपने एक सवाल पूछा है कि हमें पता रहता है कि सॉल्यूशन क्या है, रोशनी ने पूछा है, लेकिन हम उसे कर नहीं पाते। पहली बात तो जब भी आपको लगता है आई कांट डू, तो 2 सवाल अपने आप से पूछिए। पहला तो पूछिए व्हाट स्टॉप्स मी, मुझे क्या रोक रहा है? उसके 2 जवाब आएंगे। पहला जवाब आएगा या तो आपके पास वो स्किल नहीं है उस काम को करने का, या आपका बिलीफ नहीं है पक्का। मतलब एक तो ये है कि मुझे आपने बोल दिया कि सर डांस करके दिखाइए, अब मैं बोल रहा हूँ नहीं आई कांट, मैं नहीं कर सकता। तो यहाँ पे 2 ही तो रीजन है, या तो मुझे करना नहीं आता, या मुझे आता है पर मुझे लगता नहीं मैं कर पाऊंगा। तो अगर तो पहले वाली दिक्कत है स्किल की, तो वो कैसे सही होगी? बिहेवियर प्रैक्टिस से, यानी मैं प्रैक्टिस करूं। अगर ये दूसरी दिक्कत है बिलीफ सिस्टम की, ये कैसे दूर होगी? सोचने से कि मैं अपनी इमेजिनेशन में अभी देख रहा हूं अपने आप को गलत डांस करता हुआ, मैं इसे पलट दूं, मैं अपने आप को सही डांस करता हुआ भी देख सकता हूँ। और दूसरा, मैं एक्सपेक्टेशन को भी थोड़ा सा बैलेंस बना लूं। मतलब मैं ये सोचते चलूं कि चलो पहली बार स्टेज पे डांस कर रहा हूं तो मजाक भी तोड़ सकता है, क्या बड़ी बात हो गई। तो जितना मैं रियलिटी के आसपास रहूंगा उतना मुझे ये सारी चीजें परेशान नहीं करेंगी, उतना मैं एक्ट करूंगा। कई बार हम क्या करते हैं, हम जिस प्रॉब्लम को दूर करना चाहते हैं, जिस सॉल्यूशन के साथ
हम उसे बहुत वेग बना लेते हैं, मतलब हमारे पास एक्शन प्लान नहीं होता, बस हमने बहुत वेग स्टेटमेंट दे दी। जैसे एक्चुअल मैं ये दे दूं कि 2022 के दिसंबर तक मेरे अकाउंट में 50 लाख रुपए का बैलेंस होगा। अब मैंने ये स्टेटमेंट दे दी बिना एक्शन प्लान के, तो क्या होने वाला है फिर? ये जितना जितना नजदीक आता जाएगा समय, मुझे उतना उतना फ्रस्ट्रेशन आती जाएगी। तो पहले तो रियलिस्टिक होकर अपना 1 बाय 1, एक मंथ का, एक वीक का, हर दिन का अपना एक्शन प्लान बना के चलिए। काम होना ना होना वो आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में क्या है, आपके कंट्रोल में क्या है, एफर्ट करना। उसका रिजल्ट क्या आएगा वो एक अलग बात है, उस पर आपको ध्यान नहीं देना। जो भी आपने प्रार्थना के टाइम पर बहुत अच्छा बोला था ना, कि ईशावास्य उपनिषद का जो श्लोक आप बोल रहे थे, यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता, इस जगत में जो भी है भोग करो, लेकिन किसके साथ? साक्षी भाव के साथ। लिप्त होकर मत करो, मैंने किया है ये स्टेटमेंट नहीं, मेरे द्वारा हुआ है वो ज्यादा सही है। साक्षी भाव से करो सब चीजें। तो आपको उसके जितना हम अटैच हो जाते हैं ना किसी भी चीज से, उतना हमें दर्द ज्यादा देती है। जैसे अभी मान लेते हैं पार्किंग में गाड़ियां खड़ी हैं और एकदम से कोई आपके पास आया, एक गाड़ी को किसी ने उसका शीशा तोड़ दिया, तो सबसे पहले अगर आपकी भी गाड़ी खड़ी है तो आपका ध्यान किस गाड़ी पे जाता है? अपनी गाड़ी पे। अगर मैं आपको ग्रुप फोटो दिखाऊं कोई और उसमें आप भी हो, तो सबसे पहला ध्यान आपका किस पे जाता है? अपनी फोटो पे। तो हम मी फैक्टर के साथ डील करते हैं लाइफ में। अगर किसी दूसरे की गाड़ी का शीशा टूटा है तो हमें ज्यादा बुरा नहीं लगता, मेरी गाड़ी का टूटेगा तो ज्यादा बुरा लगेगा, क्योंकि वहां पर मैं क्या हो गया, इन्वॉल्व हो गया बहुत ज्यादा। बट अगर मैं साक्षी भाव से देखूं कि चलो गाड़ी का शीशा टूटा है, मैं नहीं बैठा था अंदर, वरना मेरा भी नुकसान हो सकता था। अब जो हो गया वो मेरे दुखी होने से तो नहीं जुड़ेगा, उसके लिए मुझे कुछ एफर्ट करने पड़ेंगे, मुझे मैकेनिक बुलाना पड़ेगा, जिसने मुझे जिसने शीशे को तोड़ा है, मैं उसके खिलाफ कुछ करूंगा। ये सारे एक्शन है, इन पर फोकस करना गलत नहीं है, लेकिन ये क्यों हुआ, यहाँ पर मैं एक्सपेक्टेशन और रियलिटी का गैप बढ़ाता जा रहा हूं। क्योंकि पास्ट की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है सिवाय आपके अपने दिमाग, ये हमेशा याद रखना। पास्ट अगर कहीं है तो आपके दिमाग में है, बस बाकी कहीं नहीं। और सवाल आ रखे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, आप लोग सवाल पूछ रहे हैं। भाभे, ये जो आपने पूछा है पैनिक अटैक का, ये मैं इसका जवाब यहाँ पर एकदम से नहीं दे सकता, क्योंकि अगर ये चीजें जो मैंने यहाँ पे जो डिस्कस किया है, हम अभी सारा माइंड रिलेटेड चीज कर रहे थे। अगर तो वो ट्रॉमा की वजह से है, किसी और वजह से है, कितना पेन उस व्यक्ति के जीवन में है, क्या उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस भी है इस सब चीजों का, तो वो सब देखना पड़ेगा। तो इस पे मैं जो भी बोलूंगा वो एक स्टेटमेंट रहेगी। देखो, आपने एक स्टेटमेंट दी है कि अच्छा हो रहा है लेकिन फिर भी डाउट आ रहा है कि कुछ बुरा ना हो जाए। ऐसा सोचना ही तो बुरे को अट्रैक्ट करना है ना, फ्रीक्वेंसी की जो हम बात कर रहे थे। अगर तो बुरा होना है, एक शेर है कि जो होगा होके रहेगा, टालने से टलेगा नहीं, धर्म कर्म में बरकत है, पाप फलेगा नहीं। यानी जो होना है वो होगा, मैं पहले क्यों सोचूं कि गलत होगा? इसका मतलब मैं दो नुकसान कर रहा हूं, एक तो वो जब होगा उसका पेन लूंगा, और अभी तक वो हुआ नहीं है फिर भी पेन ही ले रहा हूं मैं। तो कम से कम जब तक वो नहीं हुआ तब तक तो मैं उस चीज को, उस प्रोसेस को एंजॉय कर सकता हूँ ना। बाद में जो होगा वो तो किसी को भी नहीं पता है, ना तो मुझे पता है ना आपको पता है। तो स्वीकृति रखिए कि जितना कर सकते हैं उतना कीजिए, क्योंकि जो होगा, अगर कुछ, जैसे मुझे एक बड़ा एक इस पे चुटकुला याद आ गया, मैं उसे बताता हूँ, समय भी अपनी गति से भाग रहा है। कि एक बार एक अंकल और एक लड़का बैठे थे ट्रेन में, दोनों आमने सामने बैठे थे। तो लड़के ने क्या किया, अपने बैग से खाना निकाला। बड़े शॉर्ट में सुनाता हूँ आपको, एक छोटा सा एक चुटकुला है बस, इससे समझिए आप कैसे थिंकिंग काम करती है। तो उसने अपने बैग से खाना निकाला, उसके पास रोटियां थी, उसने रोटी का एक बाइट ली रोटी की, कुछ नहीं था उसके पास, उसने इमेजिनेशन में ऐसे लगाया जैसे सब्जी लगाते हैं, और उसे खाया, और खाते बोला वाह मजा आ गया। तो सामने अंकल बैठे थे, उन्होंने देखा यार ये रोटी तो असली है, ये हवा में क्या लगा के खा रहा है, चलो कर दिया होगा कुछ ऐसे ही। दूसरी बाइट फिर लगाया, खाया। तो अंकल से रुका नहीं गया, उन्होंने पूछा कि बेटा ये रोटी तो रियल है, पर ये तो तुम लगा के एक्टिंग कर रहे हो हवा में ऐसे, ये क्या है? तो उसने बोला कि मैं अंकल इमेजिन कर रहा हूँ कि मेरे पास दाल है, और मैं दाल को इमेजिन करके जब खा रहा हूँ तो मुझे दाल का स्वाद आ रहा है। तो अंकल बोले कि बेटा जब इमेजिन ही करना है तो शाही पनीर कर, बटर चिकन कर, अच्छी चीज करना, दाल भी क्यों इमेजिन कर रहा है? इमेजिन तो करना ही है, दिमाग का काम सोचना है। 60,000 विचार आते हैं, तो ये क्यों सोचना कि मेरे साथ गलत हो जाएगा? हम ये भी तो सोच सकते हैं कि अगर अच्छा हो गया तो। दिमाग का काम सोचना है। 60,000 विचार एवरेज एक दिन में आपके अंदर आते हैं। 90% आपके किसी काम के नहीं रहते,
5% 6% ऐसे हैं जो बिल्कुल आपके रिपीट कई साल से आ रहे हैं, फिर पढ़ के 1-2% विचार बचते हैं जिन पर आप एक्शन ले सकते हो, बस उनको पकड़ने की बात है। अगर हम यशस्वी ने पूछा कंप्लीटली हम किसी से एक्सपेक्टेशन रखना बंद कर सकते हैं, बुद्ध होने के लिए कर सकते हैं, समाज का हिस्सा होने के नाते हमें एक्सपेक्टेशन रखनी पड़ती है, लेकिन रियलिटी के नजदीक रखिए, जितना उसके नजदीक रखेंगे उतना कम आपको परेशान करेगी। जो हमारे पास है, इंद्रजीत ने सवाल पूछा, हम वही दे सकते हैं। हम ये कैसे देखें कि अपने पास क्या है दूसरों को देने के लिए? सेल्फ असेसमेंट, अपने आप से बातें कीजिए। मेरे इस फोन से मैं आपका नंबर मिलाऊंगा एकदम से मिल जाएगा, अपना नंबर मिलाऊंगा बिजी मिलेगा, बस यही दिक्कत है हमारी। हम दूसरों के बारे में सब जानते हैं, अपने बारे में कुछ नहीं जानते। अपने बारे में जानिए। अपने बारे में कब जाना जाता है? साइलेंस में, चुप्पी में, अपने से बात होती है, वहां देखिए मेरा बिहेवियर। आप अपना एक वीक का अगर बिहेवियर पैटर्न नोटिस कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा आपके पास क्या है और क्या नहीं। जितनी स्टडी मैं किसी दूसरे की करता हूँ उसकी बस 25% अपनी कर लो, ज्यादा नहीं, समझ में आ जाएगा कि मेरे पास क्या है क्या नहीं। चलिए, मुझे लगता है समय हो रखा है। मैम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैम बता दीजिए 1-2 सवाल लेने हैं या फिर हम इसको यहीं पे रोक दें। Thank you, sir. Your words were endearing. I'm sure we'll all will incorporate the thoughts and lessons that you bestowed upon us. As we move towards the end of the enchanting session, I would like to invite Ms. Ruchi Arora, Assistant Professor, BLM CE, to deliver the vote of thanks. तब तक मैम जुड़ती है, मैं आप सबका मैं थैंक यू जरूर करता हूँ अपनी तरफ से। आपने बहुत अच्छा सेशन, मतलब मेरे साल की जो एंडिंग थी ना वो बड़ी अच्छी करवाई है। और मैं प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आने वाला जो साल है वो आपका पहले आए हुए हर साल से बेहतर बने। आप लोगों को कहते हैं कि एक शेर है कि आप सबको अपना मन चाहा मुकाम मिले, आप सबको आपकी पसंद का काम मिले। तो जो आप करना चाहते हैं लाइफ में वो आपको मिले। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। और मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब तो एंडिंग हुई है इस साल की आप सबके साथ, लास्ट सेशन है मेरा इस साल का ये। तो मुझे बड़ा मजा आया आप सबसे बात करके। और मुझे उम्मीद है कि आज के पूरे सेशन में कुछ आपके काम की बात अगर मेरे मुंह से निकली है तो उसे नोट डाउन करके इम्प्लीमेंटेशन तक लेकर आना है, उसे छोड़ना नहीं है। क्योंकि ज्ञान अगर यहाँ तक रहे तो किसी काम का नहीं है, उसका बस एक ही फायदा, आप किसी को बहस में हरा दोगे। ज्ञान कर्म में आना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए आपका। तो अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं यूट्यूब पर, आपको मेंटल हेल्थ के, सबकॉन्शियस माइंड के इंस्टाग्राम पर रील आपको मिल जाएंगे। ऑफिशियल संगीत के नाम से यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम आईडी है, आप उस पर फॉलो करेंगे तो बहुत सारी रील आपको, जो सवाल आप पूछ रहे हैं मैं देख रहा हूँ, तो इसमें बहुत सारे सवालों के जवाब है उनमें, आप वहां पर देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। Sir, 1 second, sir, please. Thank you, sir. Thank you so much. It's a great privilege to have you with us. और देखिए स्टूडेंट्स जो हैं चैट बॉक्स में अभी भी अपने क्वेश्चंस, क्वेरीज पूछते जा रहे हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि सेशन में हमें स्टेज नहीं करने पड़े क्वेश्चंस, एंड स्टूडेंट्स आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग ऑन देयर ओन, एंड इट्स जस्ट अ big thank you to you. You accepted our invitation for holding the workshop on a very short notice. एंड ना सिर्फ आपने इनविटेशन एक्सेप्ट किया वर्कशॉप कंडक्ट करने का, बल्कि आपने उसे थ्योरेटिकल ना रखकर बहुत ही सुंदर और आसान ऑडियंस, स्टूडेंट्स के लेवल पे आकर, मैं देख रही थी स्टूडेंट्स स्माइल कर रहे थे, दे वर इमेजिनिंग द थिंग्स, जो भी आपने डेमोन्स्ट्रेशंस, जो भी आपने एक्टिविटीज, माइंड रिलेटेड प्रैक्टिकल जो आपने टिप्स दिए, जो स्पेसिफिकली आजकल के टाइम में कोविड-19 पेंडेमिक, व्हेन ईच वन ऑफ अस आर गोइंग थ्रू स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, बी इट पर्सनल और प्रोफेशनल, की सबकी अलग अलग हैं, पर डेफिनेटली हम सब एक ही नाव में हैं और हम सब फंसे हुए हैं इस, एंड दीज आर नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज। पहले स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ ऐसी बातें होती थी जो शायद कुछ लोगों के लिए होती थी, पर आज मुझे लगता है आज के टाइम में, आज के समय में a good mental health, maintaining a good mental health is very very difficult for each one of us. So आपने बहुत ही प्यारे अच्छे प्रैक्टिकल टिप्स दिए और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सब उनमें से
उन टिप्स को नए साल में अपने व्यवहार में इंटरनलाइज कर पाए। कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो आपने दिए कि हमें जैसे इम्पल्सिव नहीं होना है, किसी भी सिचुएशन को हमें ओवर रिएक्ट नहीं करना है, हमें अपने चॉइसेस को एक्सरसाइज करना है, हमें बैड एक्सपीरियंसेस को डिलीट करना है। तो ये जो डिस्टॉर्शन और डिलीट वाला आपने जो कॉन्सेप्ट दिया वो बहुत ही अच्छा था। और हमें मीनिंग, जो किसी भी सिचुएशन को हम जो मीनिंग दे रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। अगर हम एक अच्छा मीनिंग देंगे तो डेफिनेटली हमारा व्यवहार भी उसके मुताबिक होगा। और डिटैच, किसी भी सिचुएशन में हमें अपने आप को डिटैच करना है, एक डिस्टेंस से हमें उसको ऑब्जर्व करना है, देखना है। सेल्फ कम्युनिकेशन की आपने बात करी, माइंडफुल, सेल्फ अवेयरनेस ऑफ बीइंग माइंडफुल इन द करंट सिचुएशन, डेफिनेटली ये जॉय और सेल्फ हीलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड आपने बात करी कि हम किस तरह से उन सब चीजों की वरीज अपने दिमाग पे, अपने शोल्डर पे बर्डन नहीं रख सकते जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। सो एक्चुअली यू नो paying attention to all those things which are actually within our reach and within our control, so that is another important very good technique. And acceptance, आपने बात करी कि हमें accept भी करनी है चीजें, और कभी कभी हमें bad experiences को delete करना है, ignore भी करना है. So it's about maintaining a thin balance between accepting and rejecting, and realistic होना ये भी बहुत जरूरी है. तो हमें आज के सेशन में मुझे लगता है हम सबको बहुत सारे प्रैक्टिकल टिप्स मिले हैं कि हमें किस तरह से अपने मानसिक स्टेट को इम्प्रूव करना है, और किस तरह से हम डेली स्मॉल लिटिल थिंग्स से जो विचलित ना हो और उन पे जो है एक अच्छा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हर दिन, नया साल, नया दिन हम ले सकें. So sir, a big thank you to you, and on behalf of the entire team of BLMC, I would like to say a big thank you to you for giving such an enriching and insightful session to our students. Another, I would also like to, on record, I would like to express my deep gratitude and sincere thank you to our respected principal, Dr. Gitika Datta, BLMCE, for her unwavering support and guidance in all the activities of the college. She is actually a pillar of our strength. And finally, a big thank you to all the staff members and the students over here, and for their cooperation and active participation. A big thank you to you. You made the session, more worthwhile for each one of us. Thank you so much. थैंक यू मैम, थैंक यू. मेरी तरफ से भी प्रिंसिपल मैम का खास धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने मुझे मौका दिया और इतना अच्छा आज के टाइम पे जो ये टॉपिक हमने लिया था, जो इस विषय पर बात की थी ना, ये बहुत जरूरी है. तो मैम ने बहुत अच्छे से, मतलब ये आपका पूरा सेशन मुझे मौका दिया बोलने का, सब कुछ इतने अच्छे से हुआ. आप सबका, आपके फैकल्टी मेंबर्स का, बच्चों का, प्रिंसिपल मैम का, सबका और सबके लिए बहुत थैंक यू. Thank you, sir. Thank you, ma'am, for your kind words. Now I request everyone to please switch on their camera to have a group snapshot.